86 marks in ISCA. It was possible just because of Swapnil Patni sir. Thank you sir. I dedicate this success of mine to you. Your teaching style is really very innovative and smart. ISCA being such a technical and difficult subject, but you made it so interesting, so clear. You cleared all the concepts with so good and interesting memory techniques. You too told us short stories so that we can remember the answers. In those 3 hours of exam time, your memory techniques were really helpful, sir. I read full ISCA from your notes and summary. I did not refer any other books. Your books are sufficient. Guys, I want to tell that Swapnil Patni sir is the best and finest teacher I have ever come across. We are blessed to have such a sir. We are blessed that CA students can get a sir like Swapnil Patni. Sir, you are an inspiration to me. Not only to me, to all the students, you are a real inspiration, sir. Thank you, sir. Thank you for everything. Thanks. How are you all? I am Sarthak Gupta from Delhi, and I have secured 81 marks in ISCA and all in rank 18th in CA final November 2015 exams. I would like to thank Swapnil Patni sir for making a subject like ISCA look so interesting and engrossing so that I could score such high marks. And friends, I would like to recommend you all to go for Swapnil Patni sir for ISCA. He is simply the best faculty for ISCA in India. He makes it look so easy that you will start loving the subject. Thank you, sir. Thanks a lot for your guidance, motivation, and support, and helping me to secure such high marks. I would like to dedicate my marks to you, sir. You are simply the best for ISCA. So, guys, just work hard and make Swapnil Patni sir proud. Love you all. Bye. Take care. Kudos. Bye. Friends, this is Pooja Joshi, AIR 45, November 2015 CA final attempt. I scored 63 marks in ISCA. I also scored 87 marks in ITSM during IPCC. My all thanks goes to Swapnil Patni sir. His unique style of teaching, his unique style of memory techniques, and his unique style of explaining the topic with the examples help you to score good in the exam. Advice for my juniors will be, please don't miss the opportunity, join SP classes, and you will really get a good experience, believe me. And thank you so much, Swapnil Patni sir, to make me score so much good and to make me the AIR 45 in CA final. Thank you, sir. Hello everyone, I'm Kyurika Agrawal, AIR 40 CA final November 15 attempt. I scored 60 marks in ISCA. I would like to thank Swapnil Patni sir for these such a good marks in ISCA and also a rank in India. Swapnil Patni sir was like an angel to me because there were rumors in the market that ISCA subject is so not tough, but it is a subject which in which people are not able to score good. So I was really scared that how to score good marks in ISCA, and I then found Swapnil Patni sir. And I was lucky that I was taught by him because his book, his notes, his techniques, memory techniques and all were really a great help for me. And my juniors, I would like to say that you people are more lucky than me because you'll be getting an opportunity to be taught by him even the law subject. So just grab the opportunity and get blessed with him. So that's all. Thank you, sir, once again. Hello everyone. Hello sir. Sir, this All India 47th rank and the 77 marks in ISCA, I could achieve it all because of you. Because of your conceptual clarity and because of your notes. This made the ISCA so simple rather than monotonous. When I started taking ISCA as a subject with the module, I saw that module was so monotonous. And the moment I entered your class, I felt a sense of difference with the class. And with your classes, I could achieve the clarity and grip over ISCA. And the ISCA was a subject like कि चलो अब ISCA में तो फोड़ देंगे एकदम कि 77 marks score करना is a big deal in ISCA. Other people don't get, and this was a double advantage subject for me, which turned out to be a rank, the All India 47th rank. ISCA, I am having the highest mark in ISCA, 77 marks. That proved to be a rank, 47th rank. I could get all this because of your notes, the conceptual clarity you gave in the class, and the memory techniques which helped us to recall the topic during our exams. And the conceptual clarity helped us to write the answers very fluently with a proper answer. Hi guys,
This is Rinku Shende from Nagpur, secured AI 49 in CA Final November 15 exams and first rank in Vidarbha. A very valuable contribution given by 69 marks in ISCA only due to one person. He is Mr. Swapnil Patni sir himself. He is one of the most enthusiastic persons I've ever seen in my life, and the same enthusiasm he puts in the classes and all the students he teaches, whether it might be the real or the virtual. I personally had his virtual batch, and I tell you guys, I don't think there was any difference, that he wasn't really in front of me. ISCA is one of the very theoretical subjects which needs a sheer revision every time, and Swapnil Patni sir is the best at it. My advice to all the students is join Swapnil Patni sir, attend his classes every day. You don't have to read it at home. He's so good at the revision classes that you absolutely do not have problem in this theoretical subject. Second, stick with sir's ISCA notes. They are perfect. He has covered all the modules, all the practice manual, and all the scanners itself. And the crucial 3 hours. I bet you guys you have only 5 to 7 minutes to answer a question, and only the Swapnil Patni sir's words and his summary notes are the things what you actually remember. And that is why I followed all his procedures what he has told, and very perfectly, and that is why I was able to get such a nice score in ISCA and overall as well. I thank you sir for such a valuable contribution in my academic career, and hope that you grow as you are, and thank you very much. I am very grateful to you. Thank you. ओके यस वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. ये 2 चेहरे आपने कहीं इनको देखा है? ध्यान से देखिए एक बार. मुझे तो कई बार देखा होगा आपने. ध्यान से देखो ये कौन है? एक बार जरा देखिए और गौर से देखिए इस चेहरे को. ये वही इंसान है जो अब तक ऑल इंडिया रैंक 2 बार है ना बेटा? जी हाँ सर. हाँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली. क्या बात है. ही इज, एक बार ताली बजाना सभी लोग. ही इज राहुल बडेरा. ही हैज सिक्योर्ड अभी सीए फाइनल में रैंक नंबर इन्होंने सिक्योर किया पूरा 25, ऑल इंडिया रैंक 25, एंड आईपीसीसी में ही सिक्योर्ड, जब ये व्हेन ही वाज इन आईपीसीसी ही सिक्योर्ड 32nd रैंक. एक बार तालियां फिर से बच्चा हुआ है. राहुल आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार. मतलब बहुत मजा आ रहा है आपको आज यहाँ पे देख के. It's very awesome to be here on this place. The platform is so nice. Okay. And I secured this position. It's just only the hard efforts of you which came with the subject like ISCA. ओके रियली. Yes. और आप सभी इनको भी देखिए जरा. कौन है दिस ब्यूटीफुल लेडी? यू मस्ट बी नोइंग हर राइट. एक बार तालियां जोर से. शी इज पूजा जोशी. एंड पूजा हैज सिक्योर्ड पूजा आल्सो हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 45. तो ये पूजा जोशी एंड राहुल वडेरा ये मेरे स्टूडेंट रहे. दे हैव अटेंडेड माय आईपीसीसी इन्फोटेक. तब से ही मैं इनको जानता हूँ. मतलब मैंने ऐसा लगता है इनको बचपन से छोटे से बड़ा मैंने ही किया. वो ज़्यादा हो रहा है बट सी मुझे ऐसा फीलिंग बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दिस प्लेसेस एंड फेसेस सिंस लास्ट 4 years. मैं इनको जानता हूँ. शी वाज माय स्टूडेंट आई थिंक 2011 में क्या
Yes, 2012. 2012 में शी वाज मैरिड टू 2016. ऐसा लग रहा है मुझे, मैं काफी बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ खुद को इस समय. तो ये 25 सालों से अब ऐसा लग रहा है कि शी वाज देयर, ही वाज देयर इन आईपीसीसी एज वेल. अब फाइनल में भी ये बच्चे देखो छोटे से कितने बड़े हो गए. और इन्होंने इतना ही नहीं, जिस मुकाम पर आज लोग, आपको पता नहीं है बच्चों, यहाँ पे इंसान को 400 मार्क्स मिलने के लिए कहीं अटेम्प्ट लगते हैं. इन लोगों ने, बेटा एक बार जरा स्कोर बताना अपना फाइनल में कितना है. 508. 508 मार्क्स में बटाले बजाना 508 मार्क्स बच्चों. और जहाँ पे मतलब कि CA इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स, जहाँ पे लोगों को पास होने के वादे हैं, जहाँ पे पीपल आर नॉट एबल टू गेट थ्रू स्टोन, जहाँ पे कहीं अटेम्प्ट लगते हैं. और ये बंदा, और अच्छा इतनी ही बात नहीं, व्हेन ही वाज अटेंडिंग इसका लेक्चर, तो तभी मैंने कहा सर इस बार का भी रैंक मेरा होगा, पक्का होगा. बोले सर कोशिश करूंगा कि इस टाइम भी रैंक आए. और ही ऑलवेज एम वेरी हाई. मतलब इसका हमेशा से मैंने देखा है, जो बाकी CA स्टूडेंट में मैंने कम देखा है, ये हमेशा सोचता बहुत अच्छा है. और मुझे लगता है ये बंदा तो हार्डवर्क तो करता ही है, पर इसकी सोच की वजह से आगे पहुंचा है. हार्डवर्क तो इंडिया में सब लोग करते हैं, पर सब लोग को इतना कामयाबी हासिल नहीं होता. बेटा एक चीज तुम्हारे से सीखने से हमें भी और सबको भी, सारे CA स्टूडेंट को, इंसान ने सोच अच्छी रखना चाहिए. जो इंसान सोच से बड़ा होता है वो जरूर बेशक आगे जाता है. हार्डवर्क तो पूरा हिंदुस्तान करता है, पर हर हिंदुस्तानी को कामयाबी हासिल नहीं होती. जो इंसान बड़ा सोचता है उसके साथ में हमेशा बड़ा ही होता है. बेटा क्या कहना चाहूंगी, क्या मैं इसी बात पे यही कहना चाहूंगा कि मैं सर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने सोचा था कि आई वांट टू बी द इंडियाज बेस्ट. नाउ यू ऑल कैन सी दैट ही इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट टीचर फॉर इसका. ओके मतलब दिस यू कैन प्रूव, ही हैज प्रूव्ड इट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. बेटा आप तुम ऐसी तारीफ करते रहो, मेरे को मुझे और अच्छा लगा. पूरा आपको पता नहीं, पूरा इंडिया इस समय मुझे देख रहा है और आपको भी देख रहा है. हम लोग पूरा इंडिया भी देख रहा है. ये जो लेक्चर है इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, इट विल बी वायरल एवरीवेयर. अब ये फेसबुक पे जाकर पूरा भारत में देख रहा है इस वक्त. तो आप थोड़ी सी तारीफ करो बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. मतलब आई विल बी मोर हैप्पी टू सी दैट आप तुम मेरी तारीफ कर रहे हो. बहुत मजा आ रहा है मुझे. और बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोनों को यहाँ पे देखते हुए. आज हम लोग यहाँ पे मिले. अच्छा ये हम लोग आज मिलने का मकसद क्या है, तो पहली बार तो मैं इनको दिखाना चाहता है कौन. थोड़ा सा इनके बारे में बोलना चाहूंगा. ये पूजा जो है, पूजा तो परफेक्ट ऑलराउंडर है. और पहली बात तो थोड़ा सा इस एकेडमिक से चालू कर सकते हैं. व्हेन शी वाज इन IPCC शी हैज सिक्योर्ड 87 मार्क्स इन ITSM. मैं तब से जानता हूँ शी हैज स्कोर्ड 87 मार्क्स, जिस थियोरेटिकल सब्जेक्ट में लोगों को 60 मिलते नहीं है. और दैट टाइम मतलब उस जमाने से मैं जानता हूँ कि शी वाज, मैं मेरे कहीं हर सारे किताबों में मैंने इसका फोटो लगा रखा था. पूजा जोशी हु हैज सिक्योर्ड 87 मार्क्स. बेटा आपने कहाँ करी थी IPCC की क्लासेस, इन्फोटेक की? सर ऑफ कोर्स स्वप्निल पटनी क्लासेस. बेटा बहुत बहुत आगे जाओगे आप मतलब बहुत ऊपर. आपने, आपका जो डिसीजन था बेटा बहुत अच्छा था. मतलब आपकी जो सोच उस समय थी, आपको जजमेंट है कि आपने कहाँ पे क्लास लगाना चाहिए. एंड शी हैज जॉइन द क्लासेस. सर मेरे वजह से फाइनल की क्लासेस में भी काफी लोगों ने इसका आपके पास ज्वाइन किया था. बेटा आप मतलब बेटा ये जो आपने अब तक ऐसा कितने लोगों का है कि मैं अच्छा पढ़ा था? सर मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है. अच्छा. एंड कोई भी मुझे IT के बारे में पूछता था कैसे पढ़ाई की, गो टू SP क्लासेस. क्या बात है बेटा, तुम ऐसे ही काम करते रहो, भगवान तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगा. मतलब तुम्हें बेटा तुम ये मतलब जो तुम कर रही हो ना, बहुत सही काम करते हो. मतलब एक तुम्हें एक गुरु का जो आशीर्वाद मिलेगा बेटा, बहुत आगे जाओगे. तुम इस तरह से बोलते रहना. बट वाकई में नो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, दैट टू व्हाट ITSM इसका में इफ स्कोरिंग 87, I mean just amazing. क्या दिमाग में होता है आपके, मतलब 87, हाउ कुड यू स्कोर 87? मतलब कैसे? और अभी IPCC में she has scored 40, she has secured 45th rank. बेटा कितना स्कोर था आपका इसमें? 483. जहाँ पे लोगों को 400 मिलने की प्रॉब्लम है, she has scored 483. और हमें आज यहाँ पे आप दोनों से ये सुनना है कि आखिर आप में ऐसा क्या है जो आपको इतना स्कोर किया है. थोड़ी सी पहले से शुरुआत करते हैं IPCC इन्फोटेक से. क्या करती थी आप? 87 मतलब बहुत बड़ी बात होती है, वो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट. सपोज यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन व्हाट, अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में, इट्स नॉट बिग डील. ओके, बिकॉज अकाउंट्स है, उसमें गलत होने का कुछ है नहीं. और ऐसे में स्कोरिंग 100, इट्स नॉट बिग डील. बट इफ यू स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन व्हाट, IT तो मतलब फर्क पड़ता है, बिकॉज इतने पूरे आउट ऑफ मार्क्स तो मिलते नहीं. IDT हो, चाहे इफ लॉ हो, ऑडिट हो, इसका इफ यू स्कोरिंग 80+ मतलब इट्स ह्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट कोई आसानी से नहीं पढ़ा सकता. और स्वप्निल सर उसको इतनी इजीली पढ़ा देते हैं कि क्लास में मजा आता है. आई विल से दिस कि मैंने सर की एक भी दिन बंक नहीं किया सर का क्लास. मतलब क्या लगता था आपको क्या होने वाला है? मतलब हर रोज क्या सर मजा आता था. सर जिस तरह से मेमोरी टेक्निक्स देते थे, क्लास में क्यूमुलेटिव रिवीजन होता था, तो वो घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी.
प्लस जितना आपको कंसेप्चुअली पता है उसके अलावा आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है, और वो सब आपको सर बता देते हैं क्लास में। अच्छा, तो बेटा ऐसा हर रोज आपकी एक्साइटमेंट, आप क्लास में कभी आप सोई थी जब मैं पढ़ा? कभी नहीं सर, 1 मिनट ध्यान इधर से उधर भी नहीं होता था। जी, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लास पूरा कंसेप्चुअल क्या क्लियर। सच में हम लोग जो लिखते हैं यू वोंट हैव टू स्टडी एट होम, मतलब वो क्या आपको सही लगता है कि हम लोग ऐसे कुछ फेंकते हैं? सर बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फेंकते सर नहीं बिल्कुल सही है। मतलब बिल्कुल फेंकते हैं वैसा आप सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मैंने एग्जाम के 1 दिन पहले बुक खोली थी, सच्ची में? इतना आई वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं हो जाएगा। इंडिया सुन रहा है इसलिए आप कह रहे हो कि मतलब सच में हम सर लोग- बिल्कुल नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब सच है। में अब हम तारीफ लायक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर, समाज को, जनता को गुमराह कर रही है। सर जबरदस्ती की तारीफ कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। ये बात नहीं, मतलब स्टूडेंट्स इज ऑलवेज अनबायस्ड बेटा, क्योंकि आपके आज के इस शब्दों से आपको पता नहीं हजारों लोग इस लेक्चर को देखेंगे। आप आज जो भी मैं आपसे पूछूंगा एग्जामिनेशन के बारे में, आपको बिल्कुल गीता की कसम वो बोलते हैं ना, तो आपको ओथ पे रह के आपको बताना है कि आप कुछ गलत नहीं कहोगे, राइट? क्योंकि आप जो भी बोलोगे लोग आपको आइडल, क्या आपको लगता नहीं ये आइडल के जैसे यहाँ पे जो बच्चे, इस बच्चे की आंख में कितनी आस में, मतलब एक सपना लेकर बैठा है, वो अपने आप को देख रहा है, मतलब उसके दिल में एक इच्छा है कि वो बने तो ऐसा बने, मतलब एक वो देख रहा है। ये जो चिंटी है जो इतनी खुश है बेटा, ये शी वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पूछा, बोले सर पता नहीं क्या होगा, पर जब से आपको देखा है तो लगता है कि यार लगता ही नहीं है दोनों सी, आपको कोई एंगल चलता है सी जैसे, ये तो मतलब आई वॉज डाउटफुल कि कैसे सी बेटा, डोंट फील बैड, बट यही तो एटीट्यूड है, यही तो परफेक्शन है यार। लुक एट हिम, कोई एंगल से लगता नहीं है बच्चा सीए कर रहा है यार, मतलब यही तो बात होना चाहिए। कौन कहता है कि सीए से सैड रहकर ही हम लोग मस्ती करके भी इसको बेटा ऐसा लगता ही नहीं कोई जन्म इसको टेंशन में भी आया हो, मतलब ये सी सो क्या स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में चलती है, मतलब इतना कूल कैसे रहता है? तो अभी भी लगता ही नहीं तो रैंक में ऐसा आपको थोड़ा डाउट अभी भी लगता है? मतलब वेन ही सेड, अब मैंने कहा आईपीसीसी में एक बार हो सकता है आईसीआई से गलती हुई हो, फ्रैंकली स्पीकिंग बेटा डोंट फील बैड। तो सेकेंड टाइम आई थॉट, अब मैंने सी आई हैड हिज नंबर, आई नो हिम वेरी वेल लाइक माई स्मॉल ब्रो, बट यू नो आई डिड नॉट कॉल हिम। मैंने कहा अननेसरी इसको रैंक वगैरह कुछ आया नहीं आएगा, अननेसरी दिल पे ले लेगा, तो आई डिडंट कॉल हिम। इस डर से मुझे उनका गारंटीड रैंक तो आएगा नहीं इसका, बट ही कॉल्ड मी अप, ही सेड कि इस टाइम भी आई सिक्योर 25th रैंक। तो मैंने उस समय पे डिसाइड कर लिया, सोच लिया कि सीए स्टूडेंट तो हमेशा सीरियस होना जरूरी नहीं है, कूल रहकर क्या करता है बंदा, जब पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ता है। अभी ऐसा अगर देखेगा तो लगेगा नहीं, पर अमेजिंग बेटा क्या है, इतना कूल कैसे रहते हो? सर ये सोच ही है जो अपने को बड़ा बनाती है सर। सोचता था आईपीसीसी में, यही सोचता था कि रैंक लाना, यही सोचता था, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ दैट 50 स्टूडेंट्स मुझे कहीं तो भी आना था, वो डिसाइडेड था। सो उस टाइम जो सोचा, मेहनत तो अपने आप हो जाती है सर, मेहनत अपने आप हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जब तुम्हारा डिसाइडेड हो कि वहाँ पहुँचना है तो वहाँ अपने आप पहुँच जाओगे। एफर्ट्स लगेंगे भी नहीं, तुमने एफर्ट्स किए तुमने बहुत हार्डवर्क है, लेकिन खुद को लगेगा कि तुम बहुत खुशी से जी रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा तुम कुछ सीए कर रहे हो। और ऐसा डिसाइडेड करके नहीं चलता था कि सीए ही लाइफ है, लाइफ बहुत कुछ मोर देन सीए भी है, तो ऐसा सोच के चलता था। और फाइनल में ऐसा था कि सर रैंक 1 लाना है, लेकिन टारगेट बहुत हाई था बिकॉज ऑफ दैट, और बट आई कुड सिक्योर 25 एक्चुअली। बहुत बड़ा सोचा तो सर कुछ मिला। तो कोई बच्चा सीए पास होता वही बड़ी बात है, मतलब सी आई नेवर सिक्योर्ड रैंक, आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई सिक्योर्ड, आई थिंक आई स्कोर्ड 427 मार्क्स। बेटा मैं, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप इतने खुश हुए उस समय। एक माँ बाप के लिए बच्चा सीए भी बनता है ना बेटा, तो वो रैंक के समान ही होता है जी। तो अगर यहाँ पे बेटा बच्चा अगर पास भी होता है हमें ठीक है ना, मतलब बेटा आपको क्या लगता है ठीक ही है, मतलब बेटा कोई हमारे दिल में कोई आस नहीं, पर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई तुम में ऐसी क्या बात थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे के इंसान, मतलब हर इंसान में एक सोच होना चाहिए। सर सोच जब तक डेवलप ना करोगे, अंदर से जील आना चाहिए। लोग तुम पास होने के लिए बहुत ज़्यादा सीए स्टूडेंट पढ़ते कि हमें पास होना है, वो लोग पास होते नहीं यूजुअली। वो लोग अगर कुछ ऊपर का सोचेंगे, दे विल टारगेट सम हायर मार्क्स, दैट दे विल स्कोर अबव 500, देन दे विल सिक्योर समथिंग वेरी गुड मार्क्स। बट इफ दे चेज ओनली पासिंग, दे विल नॉट गेट पास। Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टारगेट वेरी हाई, then the practice and the hard work will always be there with you. Be happy throughout the journey of a CA. एक सवाल पूछेंगे, कितना मेहनत करते थे, मतलब कितने घंटों का आपका सफर, रोज कितने महीने आपने पढ़ाई की और कितने घंटों तक आप मेहनत करते I studied for 4 months, 12 to 14 hours a day, and I was relaxed throughout the day, and the day was chilling like with all those exercises, meditation, and throughout the day I was happy like that. जितना हो रहा है it's very cool, nothing to fear because there was no worry, कुछ सोचना नहीं, because जितना सोचोगे उतना जितना आपने पढ़ा है, nothing will going to help you at all, because worry will create you
will destroy you at all. अच्छा Nothing. नहीं एक सवाल मतलब ऐसा तो होता होगा ना कभी कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर इतना सारा बाकी है. कई लोग होले ऐसा करते हैं कि व्हेन ही रीड्स यू नो इसका सब्जेक्ट ही विल रिमेंबर डीटी, व्हेन ही रीड्स डीटी ही थिंक्स अबाउट कॉस्टिंग. ऐसा आपके दिमाग में कभी नहीं होता? बच्चे पूरा भारत परेशान है, मतलब वो एक सब्जेक्ट की इसका की क्लास में बैठेगा ना, वो दुनिया का ओ माय गॉड ड्यूटी मेरा बाकी यार, फिर किसी ने उसको आईडीटी, यार आईडीटी बाकी, क्या रहे भाई आईएफएस वो भी बाकी यार, टेस्ट बाकी यार, प्रैक्टिस में बहुत बाकी यार, आरटी बस करो भाई मैं एग्जाम नहीं देता हूँ. मतलब ऐसा तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं हुआ ये इतना लोग क्यों तुम I would like to practice the things like that. जब भी दिमाग कहीं दूसरी और सोचता था कि अभी कोई डीटी सब्जेक्ट पढ़ रहे तो आईडीटी के बारे में थिंकिंग आती थी. Usually it happens, but I have to just pressurize, not pressurize. Actually, I have to target my mind that be here with the subject. Actually, be here with the subject. I would to like to practice throughout the journey that you have to be here because when you are with this subject, you are with this subject only. That will help you a lot. It will take some of your time, but when it becomes a habit, then there will not be any pressure on you for different subject also. अच्छा मतलब जो सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं उसी पे focus करो. फोकस ऑन दैट ओनली, Yes. वी शुडंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. Yes. जी बेटा एक सवाल पूछेंगे. जैसे कि एक दिन के अंदर हमने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए? जैसे आम जनता है, देखो पूरा इंडिया में मैं बताऊं इतना पोटेंशियल है, पूरा इतना पोटेंशियल है पूरे भारत में. कहना हम लोग टैलेंटेड इसलिए तो सीए फाइनल में है, पर इसमें से केवल 5% लोग सीए बन रहे हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं. और जब वो फेल होता है ना बच्चा, तो वो तो परेशान नहीं, पर पूरे घर वाले सबसे ज्यादा परेशान. And he feels very bad when his family is getting disturbed because of his failure. तो हम लोग ने आज एक कंडक्ट इसलिए करवाया कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा जिसमें हार्डवर्किंग की कैपेबिलिटी हो, जो हार्डवर्क कर रहा हो फिर भी वो फेल हो जाए. मतलब जब मैं किसी को हारते हुए देखता हूँ, कोई बच्चा का मान लो मेरे पास बहुत सारे बच्चे रोते रहते सर मैं फेल हो गया, बट दैट टाइम मैं स्पीचलेस, मैं क्या बताऊंगा यार. मैं नहीं चाहता किसी बच्चों के साथ में जो पोटेंशियल है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चे नालायक है, जो पढ़ते हैं वो तो दे हैव टू गेट फेल. उसके बारे में चिंता नहीं, पर चिंता उन लोगों के बारे में. अभी कल एक लड़की मेरे ऑफिस में बोली सर अच्छा शी गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीसीसी में. अभी कल बात करें सर 4 अटेम्प्ट में फेल हो गई और शी इज अपीयरिंग फॉर, बोलते सर मुझे पढ़ाई का मन ही नहीं लगता. ऐसा लगता कि अच्छा मुझे क्या पूछ रही है वो 4 अटेम्प्ट के बाद में, क्या सर आपको लगता है मैं डिजर्व करती हूँ सीए करने के लिए? मतलब सोचिए क्या इंसान पे बीतती है जब इंसान इतने कंसिस्टेंटली फेल होता है. और बेटा हर एक फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन एक समान नहीं है. किसी के फाइनेंस वाले इतनी हालात खराब है इंडिया में, कई लोगों का पास होना फैमिली के लिए बहुत अनिवार्य है. मतलब अच्छा कई लोगों के ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, तो कई लोग ऐसे कि 2 या 3 अटेम्प्ट तक वो फैमिली वाले बर्दाश्त करते बोलते हैं, फिर उसको अपने हालात इतने बेबस कर जाते हैं कि वो सीए छोड़कर अब वो सिर्फ बिजनेस में लग जाता है. सीए फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है उसको जॉब करना पड़ जाती है. हम चाहते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से पूरे भारत को ये समझे कि भाई तुम पढ़ाई करो, पर डायरेक्शंस आज आप दोगे. मतलब आज जो आप डायरेक्शन दोगे द होल इंडिया इज गोइंग टू फॉलो. आप लोग को ये बताना कि भाई क्या तरीका होता है. मतलब लोग आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि फाइनल का एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, या हमारी आदतें जो है उसको डिफिकल्ट बनाती है? मतलब आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग काम है? क्या लगता है राहुल? सर ये कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं है, कुछ सिंपल सी चीज़ें करनी चाहिए. जैसे कि the more important you carry to the weightage of the subject. Actually don't read the entire subject, just go through that entire subject you have to study, but more focus on the weighted subject, because the weight of different chapter will gain you a lot of marks. And first of all the students focus on the 8 subject. If you have to score a rank, you just have to focus on 3 to 4 subject. You just target 3 to 4 subjects which you are more convenient, which you are more confident about it. You mean to say we are not supposed to focus on all the subjects? No, not equal. You have to study all those subjects. अच्छा. Actually, it's not like that. मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को हमने ऐसा बनाना चाहिए जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में सिक्योर Yes, करना ही we have to. Anyhow, you have to score more than 70 or 70 plus. ऐसा आपने भी कोई सब्जेक्ट Yes. बताएंगे अगर कौन से Sir, सब्जेक्ट? मैंने अकाउंट्स को फोकस किया था. इसका was my favorite subject. Actually, I targeted 80 plus in that, and IDT was there and costing it. The 4 subject I targeted. एक आईडीटी, एक Costing, इसका and the cost accounts. FR, yes. ये आपका स्ट्रेन था. Yes. और यू थॉट कि यू विल गेट एग्जामिनेशन दिस, आपने उस Yes, तरह से पढ़ाई की. उसी तरह से पढ़ाई थी. 4 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस था, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करता था, और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ा सब कुछ था एवरेजली. आई वाज लाइक कि उसमें स्कोर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी इतना स्कोर होता नहीं ज्यादा, कि आई कांट स्कोर इन ऑडिट लाइक 90 मार्क्स. मतलब अगर ऑडिट में आप पढ़ भी लोगे तो क्या करेंगे? कितना भी पढ़ लो सर, उसको 6 बार भी पढ़ो, आपको 50 to 60 मार्क्स आएगी, उससे ज्यादा नहीं आते. आप कितना भी अच्छा लिख दो. अच्छा, तो वी शुडंट फोकस मच ऑन ऑडिट. सर वो लोग ज्यादा ऑडिट पे फोकस कर लेते हैं
और बाकी सब्जेक्ट पे वीकर हो जाते हैं। और द मोस्ट प्रॉब्लम अकर्ड की लोग को एग्रीगेट में रह जाते हैं। वही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग 8 सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें सबको एक बात सीखने सी है, राहुल ने जो कहा कि वी शुड नॉट फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे वी हैव टू सेग्रीगेट, वी हैव टू मोर इम्पोर्टेंट वी हैव टू स्टडी ऑल। देखो इसके लिए अपना स्ट्रेंथ अलग है। फॉर यू अकाउंट में नॉट बी योर स्ट्रेंथ, सो इट्स नॉट ही Decide वो ये नहीं कह रहा कि आपको आप भी अकाउंट्स के ऊपर हो सकता है लॉ इज योर फेवरेट, हो सकता है आपका आईडीटी फेवरेट, हो सकता है आपका इसका फेवरेट, सो दैट इज योर डिफरेंट थिंग। मतलब ये तो है, मतलब ये तो हमें समझना चाहिए। राहुल पूजा, आपका क्या मानना है कि आखिर भारत में लोग इतने कम, आपके भी कई फ्रेंड्स हैं, आपको भी यू मस्ट बी फीलिंग बैड कि आपका फ्रेंड आपके रिलेटिव्स फील होता है, और एक है कि आपकी फ्रेंड जो आपके साथ में पढ़ रही थी, उनकी फ्रेंड जो उनके साथ में पढ़ रही थी, शी डिड नॉट इवन गेट थ्रू, और ये है कि शी गॉट रैंक। इवन ऐसा नहीं कि इसको बहुत मजा आ रहा है, पर एट द सेम टाइम शी फील्स बैड कि इन्हीं की अपनी फ्रेंड जो साथ में पढ़ाई करती थी और शी गॉट फेल। ऐसा क्या होता है, व्हाई यू सिक्योर्ड रैंक और बाकी लोगों में पास होने का भी एबिलिटी नहीं है, 400 नहीं और तुम्हें 500? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ड वर्क तो सब बच्चे करते हैं, बट स्मार्ट वर्क ज़रूरी होता है एग्जाम में। तुम लोग पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, बट एग्जाम के 3 घंटे में हाउ यू प्रेजेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई करते हैं लोग, पढ़ लिया, अरे थोड़े दिनों बाद रिवाइज नहीं किया, यू फॉरगेट इट। लेकिन क्यूमुलेटिव रिवीजन भी होना चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे कर सकते हो? लाइक कोई सब्जेक्ट है तो एक पेज पढ़ा, यू जस्ट पॉइंट आउट कि उस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो विद द रिवीजन वो पॉइंट्स पढ़ लो, सो दैट तुम्हें सब याद आ जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें यू शुड प्रिपेयर कि एग्जाम के दिन व्हाट आई हैव टू स्टडी, क्योंकि एक दिन में, एग्जाम के 1.5 दिन में तुमको सब पढ़ना भी होता है। तो आपका ये मानना है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन, जो आपने स्मार्ट पढ़ाई में क्यूमुलेटिव रिवीजन को मानती हो, हाँ। क्या आप भी सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज किया करती थी? बार बार, हर 15 डेज के गैप में आई यूज टू रिवाइज। क्या बात है बेटा, हमेशा ही जब मैं इसका, क्या आपको लगता है इसका भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए? सर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने सर की क्लास लगाई थी, तो टू बी फ्रैंक मैंने 8 सब्जेक्ट्स के लिए कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल बनाया, क्योंकि इसका मेरा क्लास में ही रिवाइज हो जाता था। अच्छा यस सर। बेटा आप बहुत आगे जाओगे, आप जो बोल रहे हो, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, मतलब आप ऐसे ही बोलते रहो बेटा, आप दोनों बहुत और वन मोर थिंग सर, अभी लॉ भी ले रहे, तो यू पीपल आर मच मोर लकी। हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट में मजा आता था, अभी तुम लोग को 2 सब्जेक्ट्स में मजा आएगा। बेटा हमेशा से मेरी ये सोच रही, मेरी क्लास का टैगलाइन है यू वोंट हैव टू स्टडी। मैं सोचता ही हूँ कि बच्चा अगर सारा टाइम इसका में और लॉ में लगा देगा। अच्छा, लॉ स्टार्ट करने की वजह इट वाज नॉट मी वो डिसाइडेड टू स्टार्ट लॉ। जब मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाने लगा, होल इंडिया गॉट टू नो। मेरी क्लासेस 115 जगह पे चलती है इंडिया में, हर जगह से, एवरी डे। सी आई शेयर, आई एम वेरी फ्रेंडली विद माय स्टूडेंट्स, आई हैव कनेक्शन विद एवरी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग माय लेक्चर। मेरे फोन नंबर तो सब पूरे बाजार में, सो एवरीबडी नोज माय फोन नंबर, एवरीबडी हु लाइक्स माय लेक्चर, ही सेड्स के सर बहुत मजा है, इसका में मजा है, आईटी में मजा है, और मुझे बोलते सर 1-2 सब्जेक्ट और भी पढ़ा दो, सर ऑडिट पढ़ा दो। देखो सही, ऑडिट मेरा फील्ड नहीं है, बट सिंस आई एम आई कंप्लीटेड लॉ, आई कंप्लीटेड सीएस, तो आई थॉट कि चलो यार मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ कि जो, और आई वांटेड टू स्टार्ट लॉ। तो अभी ये लॉ का भी जो पढ़ा रहा हूँ और जो पूरा इंडिया पढ़ रहा है, ये भी वैसा ही है जैसा कि इसका पढ़ रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, तो सच में दीज पीपल आर वेरी लकी। थैंक यू, वो तो है। और कितना स्कोर किया आपने इसका? 63 मार्क्स। 63 मार्क्स बेटा। क्या आपने क्लास में, जब मैं रिवाइज करता था, क्या आप भी रिवाइज, कई बच्चे जो क्लास में जब मैं रिवाइज करता था उनको लगता है कि सर टाइम पास हो रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा है, मतलब कि रिवाइज करना? नहीं सर, ये मैं अपॉर्चुनिटी लेती थी कि मुझे घर में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो सर क्लास में रिवाइज करे तो आई यूज्ड टू पे अटेंशन, और सर जो बोलते साथ में बोलने को भी मजा आता था। सर की मेमोरी टेक्निक से इतनी भारी होती है। वो तो है, मतलब वो मेरा पता नहीं कहाँ से गॉड गिफ्टेड है, मेरे दिमाग में वो चीज़ें डेवलप हो जाती है। मतलब आई डोंट गिव टाइम टू डेवलप मेमोरी टेक्निक, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। मैं सोचता हूँ, वो आ जाता है, जैसे हनी सिंह रैप बनाता है, इट डजंट थिंक मच। तो वैसा मैं इस कोर्स होने का, जैसे अगर मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे याद रखना है 10 पॉइंट्स है। सी, अगर मैं सीसा पढ़ा था या मैं सीबीडी पढ़ा था, देयर इज नो नीड ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, बट हमारा आईसीए का जो सिलेबस है, इसका में स्पेशली और आईटी में, देयर सो मेनी पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है, मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझेगा कि पॉइंट्स पे याद रखेगा। अगर मेरी एग्जामिनेशन 4 में से एक बोले को टिक करना है, तो आई वुड नॉट हैव रिमेंबर्ड इट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली सीए सिलेबस का एग्जामिनेशन का पैटर्न ही चेंज होना चाहिए। व्हाई वी शुड रिमेंबर, इट शुड बी कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन पूरा के पूरा। अच्छा, इसमें इसका में एफर्ट्स डबल है, कॉन्सेप्ट भी समझो और तुम्हें याद भी रखना है, तो इट इज अ 2-वे एफर्ट। तो
इसीलिए मैंने आई थॉट कि यार चलो ये प्रेशर कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरे भारत में पिछले साल 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाया होगा। तो पूरे भारत में अब हर जगह पे हर सिटी में लोग यही बोलते हैं कि अब इसका इज नो मोर प्रेशर। मतलब वैसा वो उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉ में वैसे होना चाहिए। सर बिल्कुल होगा सर। एक इसका मैं एक चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे सर क्लास में जो एग्जांपल्स देते हैं लाइव वीडियोस, क्योंकि बच्चों को वर्चुअली चीज़ें याद रहती है। प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं बट एग्जांपल्स देते हैं, बट वो एग्जाम के दिन रिकॉल भी होनी चाहिए। जैसे सर ने एक बार क्लास में एक्सपर्ट सिस्टम बताया। एक्सपर्ट सिस्टम में सर ने हमको BMW ऑटोमेटिक जैसे ड्राइव इन हो रही है वो हमको सर ने दिखाया। तो जब एग्जाम में वो आया ना क्वेश्चन, तो आई वाज रिमेम्बरिंग वो है BMW, चलो हाँ पॉइंट्स याद आ जाएंगे। तो उस हिसाब से कंसेप्ट भी याद रहती है, एंड फिर एग्जाम में तुम लोग उसे प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर विल नो कि इसे कंसेप्ट पता है। नहीं, मैंने यही सोचा है मेरे साथ जिंदगी में। एक राहुल मैंने सोचा था जिंदगी में, जब मैंने आई वाज स्टडीइंग CA, आई यूज्ड टू स्केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट इसका, और ये मुझे लगता था ये बड़ा बकवास सब्जेक्ट है। इवन इनफैक्ट आई डिड नॉट स्कोर मच इन IT, बट मैंने सोचा कि चलो यार ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा दुनिया में पहले थ्योरी आया क्या प्रैक्टिकल है, मतलब किताबें पहले बनी होगा या प्रैक्टिकल है। तो मैंने सोचा, कई लोगों से पूछा, बोले दुनिया में पहले प्रैक्टिकल ही हुआ होगा, फिर बाद में ऑथर ने किताबें बनाई होंगी। तो मैंने कहा कि अगर प्रैक्टिकल चीजें हुई तो व्हाई आई एम नॉट शोइंग प्रैक्टिकल टू देम। तो आई कन्वर्टेड दिस थियोरेटिकल सब्जेक्ट इनटू प्रैक्टिकल। मैंने सोचा हर वो चीज जो प्रैक्टिकल है, तो व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग इन थ्योरी, एक काम करो प्रैक्टिकल दिखाओ, बाद में थ्योरी को एक्सप्लेन कर दो, तो स्टूडेंट कैन इजीली रिलेट दोस थिंग्स। तो दिस इज व्हाट आई नो आई ट्राइड। तो इसलिए आई रियली एंजॉयिंग कि अब वो यूनिक स्टाइल पूरा इंडिया फॉलो करता है। राहुल क्या बोलना चाहोगे, हाउ मच स्कोर्ड इन इसका, कैसा रहा आपका इसका सफर? Scored 69 in ISCA, and about ISCA I would say कि the more important volume number 4 is very helpful, and along with that you don't need to cover the practice manual, because the question bank which sir give actually cover all those questions along with the practice manual, the past question paper also. You can just revise ISCA in just 1 hour with the question bank once you are through with the volume 4. It's important that you can cover the subject on the exam day 5 to 6 times. You can just recollect it, and the most important thing, just I was like मैं इसका को जब पढ़ता था तो उसको मैं एज लाइक रिलैक्सेशन सब्जेक्ट करके पढ़ता था। बाकी सब सब्जेक्ट होने के बाद इसका को 1 घंटा पढ़ता था डेली, जस्ट एज लाइक कि आज ये दिन का रिलैक्सेशन है मेरे लिए। मैं रिलैक्स करके पढ़ता था कि ये कुछ एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ है वो, और इतनी मस्ती से पढ़ता था कि बाजू वाले घर वाले भी बोलते थे कि क्या चिल्ला क्या रहे हो आप। तो इतना एंटरटेनिंग से रिदम थी, बॉडी लैंग्वेज आती थी सर। FC रोड पे जाएंगे, FC रोड पे जाएंगे, FM सुनेंगे, TV देखेंगे, यस दिस इज ऑल काइंड ऑफ। और एक रिदम आता है, सर का पैशन भी है जो अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो चीज दिखती है। मैं तो ये सोचता हूँ राहुल, ये सब्जेक्ट मरे हुए, मैं भी मरा हुआ, अगर मैं ऐसे जनरल टोन में पढ़ाऊंगा तो पूरे इंडियाज हो जाए। मतलब एक तो पहले लोगों को इसका को पढ़ने की इच्छा नहीं है, पहले तो क्यों है क्या पढ़ रहा है। और लॉ भी अगर मैं ऐसे लेट के पढ़ाऊंगा, देखो पूरा इंडिया में नॉलेज बहुत टीचर के पास में होगा, पर लेट के पढ़ाऊंगा। मतलब टीचर से अगर सोएगा तो फिर कैसे बच्चों में वो अंदर आएगा। अरे उसको वो पहले मरा हुआ उसको उठाओ, फिर चलाओ, एवरीबॉडी लेट्स रॉक कम ऑन नाउ। ये जब बॉडी में जाता है ना तो तब बोला अच्छा कुछ समथिंग विल हैपन। ओके, मतलब वो है कि वो तो हमारा काम है टीचर्स का, तो हम लोग किस काम के, अगर बच्चा हमारा क्लास अटेंड कर रहा है और फिर भी उसको वही मेहनत करना पड़ता है। व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइनिंग द क्लासेस। तो सी देयर इज नो एज गैप। मैं आई वाज 7 years बिफोर आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई हैव एक्चुअली फेस्ड ऑल दिस थिंग्स। थ्योरी पेपर में आई यूज्ड टू हेट, यार क्या भाई मतलब मुझे ऐसा लगता था भाई बस करो, बार-बार घड़ी देखता था, बस बंद करो, कितना तुम बोलोगे भाई एक दिन में। तो बट आई थॉट, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा लास्ट शुड बी लाइवली। और मैं ये मेरा अचीवमेंट है कि मेरी क्लास में लोग, बेटा आप सोई थी मेरी क्लास में? नहीं सोई थी बेटा, नहीं मैं चौकन्ना रहता था। चौकन्ना, अच्छा ठीक है राहुल। जैसे कि आई विल ऐड टू पॉइंट कि जैसे कि सर ने सोचा कि जैसे ही मैंने सोचा कि ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऑल दिस थिंग, कि प्रैक्टिकल पहले होता है कि थ्योरी, जैसे सर ने सोचा कि ये चीज़ें बच्चों को किस वे से समझने चाहिए, वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सर की सोच है वही आगे लेके गई सोच। जो लोग सोच ही नहीं पाते, एक्चुअली आई वुड रिलेट टू इट विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो लोग सोच ही नहीं पाते पास होने का और ये चीज़ें सोच ही नहीं पाते, वो लोग हो ही नहीं पाते। मैं तो बोल रहा हूँ कि सोच अंदर से डेवलप होगी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, वो अंदर से अपने आप डेवलप होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक अ हैबिट ऑल्सो टेक 21 days टू बिकम योर हैबिट। सो आप थोड़ा सा, सर बोलते भी थे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था IPCC में सर को कि डॉक्टर मुझे याद क्यों नहीं रहता है, कुछ चीज़ें याद क्यों नहीं रहती है। तो डॉक्टर बोला बेटा कुछ भी चीज़ याद होने को सर 18 दिन तो लगते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसी लिए, और मैं सब्जेक्ट का रिवीजन ऐसे करता था, थ्योरी सब्जेक्ट मोस्टली, कि आज अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा है तो मॉर्निंग आई वुड टू ग्रास्प इट वेरी फास्ट एंड अगेन आई इस बात को वापस दोहराते हैं।
क्या बोला आपने कि आपने मान लो आज एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा, तो फिर वापस कब पढ़ने का उसको रात में सर 10 मिनट देता था मैं, ज्यादा नहीं, वापस से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट फिर आज फास्ट। दिन भर में मैंने क्या रिवाइज किया? Yes, एक बार fast. सभी लोग पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार आप सभी को एक एडिशन मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आज रैंकर से मिलना जरूरी है। पूरे दिन भर में जो पढ़ते हो, जैसे हम लोग पूरे लॉ में जो पढ़ते 4 घंटे, हम लोग रात में 10 मिनट में एक बार रिवाइज करता कि आपको एक वो मिले कि हम लोग ने जो आज किया वो कहीं ना कहीं तो रिटेन्ड है। हाँ जी। और वही वापस मैं मॉर्निंग में भी 10 मिनट और देखता था सर। अच्छा। यस, कि वापस दिन का गैप सर, जितना आप गैप करोगे वो 9 इतना अपना आपकी रिडक्शन हो जाता है अपने माइंड का, रिडक्शन वो जितना चीजें याद जाती याद हैं दिमाग से। वो फिर बाद में फिर नेचुरल हो जाती है, वो चीजें अपने आप अंदर से आती, नेचुरल, उसको ज्यादा एफर्ट देने नहीं पड़ते सर। Yes, yes. एफर्ट्स विल रिड्यूस्ड। एक मिनट पूजा, एक सवाल है आपसे कि दिन में कैसे आप कितने सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, मतलब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू यूज्ड टू रीड? सर 2 to 3 सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ने चाहिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, और थ्योरी प्रैक्टिकल का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरे भारत में लोग ये सब, मुझे मैं बहुत जगह पे गया, मैं लेक्चर्स दिया, हर जगह पे कॉमन क्वेश्चन है सर एक दिन में कितना घंटा पढ़े, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, सर थियरी को कैसे पढ़े, सर प्रैक्टिकल को कैसे पढ़े, सर 3 घंटे में पेपर होता नहीं। आज वो सारे सवाल हम आप दोनों से पूछेंगे, ऐसा समझो पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछ रहा है। क्या करना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए आपका इसके बीच? पढ़ते वक्त 2 से 3 सब्जेक्ट्स लो, और सबसे पहले वो सब्जेक्ट लो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि एट द एंड अगर जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सब्जेक्ट आप पहले ले लेते हो, जो नहीं आता वो आप लास्ट में छोड़ देते हो उसको। तो इसलिए जो नहीं आता वो सब्जेक्ट पहले लो, उस पर अपना ग्रास्प बनाओ, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो तो तुम इजीली कर ही सकते हो। अच्छा ठीक है, एक सवाल और राहुल, ये सारे सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ती थी एक दिन में, मतलब? नंबर ऑफ आवर्स 8 to 10 पढ़ती थी, लेकिन वो क्वालिटी स्टडी होती थी। नहीं बेटा, वापस से आप दोहराइए क्या बोल रही 8 to 10 आवर्स। हमने तो पूरे इंडिया को ये बोला 14 घंटे पढ़ना, 16 घंटे सब वेस्ट है। सर बिल्कुल सर, क्वालिटी आप ये बोल रहे 16 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। सर जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ते हो वो क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा कोई 14 घंटे 16 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट है। सो जो तुम पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ो, बस फोकस ऑन दैट। मतलब बेटा आपका ये मानना है क्वालिटी फोकस मतलब क्या डिफाइन करो? कई लोग हैं, ये बच्चे जो है पढ़ती है, इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जब ये पढ़ती है किताबें सामने होती, इसकी आंखों के सामने किताबें, पर दिलो दिमाग में कुछ और। क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ? सर बिल्कुल होता था सर, बिल्कुल होता था, कि हम भी नॉर्मल स्टूडेंट्स ही है। 8 घंटे में आपके सामने ये भी होता था? हाँ सर होता था। तो फिर आप अपने आप को कैसे रोकते थे इसके? सर उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, फिर थोड़ा घूम के आने का, और फिर वापस फोकस करने का कि क्या पढ़ रही हूँ, और फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट जब आने लगता है ना, तो अपने आप दिमाग कहीं नहीं जाता, उसी में रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा होता है लोगों के साथ। जनरली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, व्हाट आई स्टिल थिंक, कि जब भी आपके दिमाग में कुछ घूमता है तो यू शुड रीड इट लाउडली। मतलब कि बेटा राहुल आप भी सहमत होंगे इस पॉइंट से, कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग में कुछ, देखो कई बार होता है कि यू आर स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बुक फॉर 15 hours 16 hours, but you are able to focus only 8 to 10 hours, then what's the use? I mean just लग तो रहा है 16 घंटे, दुनिया को लग रहा है तमाशा दिख रहा है 16 घंटे पढ़ रहा है, पर तो हाउ मच स्टडिंग एक्चुअली? तो आई थिंक यू शुड रीड लिटिल लाउडली, मतलब कि जैसे हाउ मच टू स्टडी DTID, लाइक जस्ट रीड लाउडली, मतलब ताकि आपके दिमाग को हर एवरी सेकंड ये मिले कि तेरा दिमाग यहाँ पे है, यू शुड नॉट रोम अराउंड। और सर ने एक टेक्निक भी बताई थी, सुबह सुबह, एक्चुअली मुझसे सुबह बिल्कुल उठना नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो सुबह 4 बजे मैं उठ जाती थी, लेकिन उठने के बाद फिर 4 बजे उठती थी आप? हाँ 4 बजे मैं उठती थी। अच्छा। लेकिन उठने के बाद फिर बहुत नींद आती थी, तो सर ने हमको एक टेक्निक बताई थी। सर जो करते थे वो, सर चैनल लगाते थे, वो गौर से देखिए इस इंसान को। You still remember this? तो वैसा टीवी चैनल में लगाती थी, तो अपने आप नींद उठ जाती थी। बेटा बिल्कुल ये, मतलब इवन आई फॉलोड थ्रू आउट माई करियर। if I'm getting up in the morning, after you get up, do not study directly. अगर आप उठने के बाद में किताब हाथ में ले रहे हो, you are gone, you are out. You have to do something ताकि आपको होश आए कि जिंदगी में और भी कुछ है नींद के अलावा. You have to put on music. You have to play something, the channel which you like the most. मैं तो आज तक वगैरह दिखता था और काफी मजा आता है। when you get up in the morning, 15-20 मिनट ये देखो, it is not a time wastage, okay? ये बहुत काम भी, 15 मिनट बाद में आपको ऐसा होता है, उसके बाद में चाय पी लो, 4:20 से अब आपको पढ़ना है, राइट? Yes. इसके अंदर ऐसे ही पढ़ा देती थी। Yes. बेटा और एक चीज पूछेंगे हम पूजा आपसे, पढ़ाई क्या पूरे समय कंसिस्टेंटली होना चाहिए या फिर
थोड़ा सा गैप होना चाहिए। कई लोग हैं थ्रू आउट एंटायर डे सर जो लाइब्रेरी में बैठा 6 घंटे से 2 बजे उठता है सिर्फ टॉयलेट जाता। तो क्या है मतलब ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, कंसिस्टेंटली कोई भी चीज अगर आप करोगे तो आप बोर हो जाओगे इससे। अभी कोई अलार्म टोन भी अगर आप रेगुलरली वो सुन रहे हो तो यू विल गेट बोर्ड। अच्छा अच्छा। तो इसलिए कंसिस्टेंटली कोई सब्जेक्ट मत करो। 1 आवर 2 आवर्स का गैप रखो बीच में। यू गेट अप, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो। ईट समथिंग, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता था, सो आई यूज्ड टू ईट समथिंग, आई यूज्ड टू वॉक अराउंड, और फिर से मैं वापस आके रूम में बैठती थी। ये लेक्चर बेटा पूरा भारत देख रहा है, तुम खाने की बात कर रहे हो मतलब आप लोग। सर इंडियन माइनॉरिटीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। चलो ठीक है बेटा, वो तो जस्ट किडिंग। मतलब आपका ये मानना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक 90 मिनट्स के बाद में 120 मिनट के बाद में आप यू हैव टू टेक जस्ट शॉर्ट ब्रेक 5 या 10 मिनट का। मैं भी खुद लेता था। मैं तुम्हें टीवी अच्छा लगता है टीवी देखो, आपको कुछ भी करना है करो 5, बट डू नॉट स्ट्रेच फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स। होता कि एक समय के बाद में यू गेट बोर्ड, फिर उसके बाद में यू डू नॉट गेट दैट एफिशिएंसी व्हिच यू गेटिंग इन द मॉर्निंग। तो थोड़ा जस्ट नॉट लाइक कि आपने टाइम पास करने में 1 घंटा डाल दिया। कंट्रोल योरसेल्फ, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम इनफ। वापस आगे न्यू सेट एंड देन आगे न्यू स्टडी। राहुल क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा इसके समय? कुछ सवाल मैं आपसे वापस से पूछना चाहूंगा। कितना घंटे सोना चाहिए आदमी ने? मतलब एक दिन में काफी पूरे लोग ये सोते हैं, पर बेटा कुछ लोग ज्यादा ही सोते हैं भारत में। मतलब जिसमें लड़कियां तो मतलब पूछो मतलब हौली होती है लड़कियां जिसमें बहुत सोती है। मतलब इनको रात की नींद 6 घंटे की चाहिए, फिर दोपहर में खाना देते अगेन दे फील स्लीपी। तो ये बच्चे तो 2 घंटे भी दोपहर में सोती है, और फिर इनको जब सवेरे व्हेन शी ईट्स इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जब करती है अगेन शी फील स्लीपी। मतलब पूरे सोने में ये हम ऐसा बोल नहीं सकते पढ़ते पढ़ते सो रही है, हम ये बोल सकते सोते सोते पढ़ रही है। मतलब ये समझ ही नहीं आता हो क्या रहा। मतलब पूरा भारत मतलब कि ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई और ये जो नींद है ये दोनों साथ में आती है। मतलब इतना दोनों का पूरे दिन भर चलता रहता है ना बेटा? बहुत होता है, इतना सोता है इंसान। आपने इसके ऊपर कैसे ओवरकम किया? मतलब नींद आपको नहीं आती थी? आई यूज्ड टू स्लीप 6 to 7 hours। मेरा डेली फिक्स था कि मैं 12 के बाद कभी पढ़ा नहीं, आफ्टर 12 o'clock अच्छा। नाइट 12 के बाद कभी पढ़ा नहीं, फिक्स था 6 to 7 hours। और मेरा ऐसा था कि मैं अलार्म नहीं लगाता स्पेशली उठने के लिए। अच्छा। अलार्म नहीं लगाता तो बिकॉज जिसके पास अलार्म होता है सर उनके पास स्नूज ऑप्शन पक्का होता है, और वो स्नूज ऑप्शन का बराबर से यूज करते हैं। और जब यूज करते हैं तो 6 की 8 कब बजती है और 6 की 10 कब बजती है उनको ही नहीं पता चलता है। अच्छा। तो सबसे पहले जब जैसे सब एग्जांपल देना चाहूंगा उसी के लिए कि यूजुअली अपन 9 बजे उठते हैं नॉर्मली, फिर द नॉर्मल रूटीन इज 9 बजे। और अगर पापा ने उसी दिन बोला कि कोई फ्रेंड आने वाला 5 बजे तो हम उस दिन अलार्म भी लगा लेते 5 बजे का, और दिमाग को दे देते कि भाई 5 बजे उठना है 5 बजे। आप ऐसा होगा, आप यूजुअली प्रैक्टिस करोगे, आप देखो भी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज कि आप 5 बजे के पहले उठ जाते हो, देख लेना आप। और अगर आप यही प्रैक्टिस करते हो 2-3 दिन तो आपका रेगुलरली हो जाएगा। आप 6 बजे बिना अलार्म के उठोगे और आप ऐसे उठो कि मुझे पढ़ना है। Okay. सिर्फ सोना। राहुल से बात करके बेटा आप कितना सोती थी? 6 hours। मतलब बेटा ये 8 घंटे सोना था वेस्टेज ऑफ टाइम होंगे। अच्छा 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 ओके ओके। इनका ये भी मानना है कि शुरुआती के कुछ दिनों में ये 8 घंटे भी सोई थी, फिर धीरे धीरे करते उन्होंने अपनी नींद रात की और दोपहर की मिला दी। 6 रात मतलब दोनों का। अब ये दोनों अलग मत समझना क्योंकि आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ये कन्या दोपहर में भी सोती। तो बेटा कई लोग हैं जो 6 घंटे और दोपहर में 3 घंटे 9 से 10 घंटे तक हौले जैसा सोते हैं। बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा सोना जरूरी नहीं। यहां तक कि मैं भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई नेवर स्लीप मोर देन 6 hours। आई थिंक इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर भगवान ने जिंदगी दी तो जिंदगी जीने के लिए, सोने के लिए नहीं। और अगर 24 में से अगर 12 घंटे आप सो ही रहे हो तो व्हाट इज द यूज? मतलब आपने आधी जिंदगी, अगर आपकी लाइफ 30 साल बची तो 15 साल तो आपके सोने में चले गए। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई तुम इतना आगे क्यों गए, मुझे अगर पूछोगे तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है मैंने टाइम को बहुत इज्जत दी। और ये टाइम ऐसा हौलापन नहीं कि वो व्हाट्सएप पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं। काम करो वो जो प्रोडक्टिव है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, जिसमें ग्रूमिंग हो रही हो, आपका नाम बन रहा है, आपका आइडेंटिटी, आपका वजूद बन रहा है, आपके नाम से लोग वाह करें, इस चीजों में टाइम डालो यार। ये सब क्या है? चैटिंग एंड व्हाट्सएप, व्हाट इज दिस? सोने से क्या मिल गया आज तक इसको? बेटा लोग कहते हैं कि सर आपको जिम जाने टाइम कैसे मिलता है? अरे भाई जिम जाने का सिंपल सा चीज है, जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट डालो। ये बच्ची 8 घंटे सो रही है, मैं 6 घंटे सोता हूं, जो 2 घंटे मेरे पास बचते, मैं जिम जाके आता हूं, तो मेरा शौक पूरा हो रहा है। हर सीए स्टूडेंट में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि कितने बजे, ये कभी भी, ये बच्चा क्या बोला, एक बात सुनिए आपने, 12 बजे के बाद में पढ़ेगा, ये डिसिप्लिन कहते हैं इसको।
एक फॉर्मेट होना चाहिए। आप कभी 1 बजे सोते हो, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे उठते हो, कभी बजे। दिस इज नॉट द वे यू लिव। और जब ये सब करना है ना, जिंदगी पड़ी है मेरे पास, आप करो ना। अभी आपके जिंदगी में कौन सा वक्त चल रहा है? आपके जिंदगी में वो वक्त चल रहा है जो सबसे कीमती है। ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस समय पे आपको 1-1 मिनट की पड़ी हो। अभी एग्जामिनेशन ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट। आप समझते हो इसकी अहमियत क्या है? 90 दिन। आप समझते हो 90 दिन में क्या क्या होने वाला है? अभी आपका आरटीबी बाकी है, प्रैक्टिस राउंड बाकी है, अमेंडमेंट बाकी है, एक एग्जामिनेशन देना है, दुनिया की चीजें बाकी है। आपका एक बार का रीडिंग तक अब तक खत्म नहीं है, तो व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, क्या कर रहे हो आप? हर रोज आता आप ये सोचते हो आपको पढ़ाई करना है, और हर रोज आते वो वही होता है जो हो रहा है। हर रोज रात में ये डिटरमाइन करते हो कि कल सवेरे मैं उठता हूं और कल सवेरे बजा दूंगा। कुछ नहीं होता। एवरी डे कम्स लाइक दैट, गोज लाइक दैट। कुछ नहीं करते हो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने ठान लिया 14 घंटे पढ़े, तो 14 घंटे से 1 मिनट में अगर कम हो रहा है तो मां कसम सोऊंगा नहीं। दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, एक लक्ष्य होना चाहिए आपके सामने, वो करना क्या है। हर इंसान के पास में एक लक्ष्य होना जरूरी है। जब तक कोई आपके सामने ध्येय ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तब तक जिंदगी कुछ काम की। आज भगवान ने दिया मेरे पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं। अगर मैं आज मेहनत ना भी करूं ना राहुल, तो जिंदगी आराम से कटती मेरी। पर आज भी वही रहे कि कुछ करके दिखाना है, इस समाज के लिए, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए। वो लक्ष्य के लिए मैं कर रहा हूं। इतनी मेहनत, इतने कलर बुक्स निकले, लोग बोलते इतना टाइम कहां से मिलता है? लॉ में मेरी 5 किताबें आ रही है, रात दिन एक कर रहा हूं। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, सिर्फ सारे स्टूडेंट्स का बर्डन कम होगा। इतने चार्ट्स बनाए, इतने सारी चीजें की कि आई वॉन्ट टू नो, कुछ तो करे। हर कोई इंसान खुद के लिए तो जी रहा है यहाँ पे। अगर मैं वैसे भी चार्ट्स ना दूं और इतना मेहनत करो, वैसे भी स्टूडेंट्स आएंगे, मैं पढ़ा तो रही हूं, बट आई वॉन्ट समथिंग विच शुड बी डिफरेंट, जो कुछ तो काम में आने दो यार। अगर मेरी एक बार की अगर मेहनत है तो पूरे हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा पूरे भारत भर में। अगर मैं जो चार्ट्स डाल रहा हूं, अगर मैं कुछ बुक्स बना रहा हूं, कलर बुक्स बना रहा हूं, तो पूरा भारत यूज कर रहा है। तो मैं चाहता ठीक है ना यार, मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं, पर मेरे कारण कितने लोग आज इसका में पास हुए, कितने लोग है बेटा। 400 से ज्यादा एग्जामिशन है, 12 लोग रैंक में, 400 की ज्यादा। आज तक इंडिया में इसका का इतना स्कोर हुआ ही था। पूरे भारत में सबसे पहली बार आईसीए के मेंबर ने कहा ये दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट पूरे इतिहास में, 50 सालों के इतिहास में, कि इतना इसका में स्कोर आया। मैंने कहा अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अब जमाना हमारा चालू होगा। हम दुनिया को बताएंगे कि पढ़ाई होती कैसे। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, 60 सालों का, कितने लोगों को इसका में एग्जामिनेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट एवर इन द हिस्ट्री। मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आई हैव रीच्ड एवरीवेयर ना, पूरे हर गांव में, हर जगह पे पीपल आर अटेंडिंग माय लेक्चर। तो पूरा रिजल्ट ऐसा 400 एग्जामिनेशन, देयर आर सो मेनी, मोर देन 50 स्टूडेंट पूजा यहां पे से, दे हैव सिक्योर्ड 200 मार्क्स ओनली बिकॉज ऑफ इसका। तो हम लोग ये जैसा ये हुआ था, अगर लॉ और इसका में अगर आपको 60-70 मार्क्स आते हैं, तो 70-70 तो बोस आपको बाकी सब्जेक्ट में 40 देता है, दैट्स ऑल ओवर। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे बच्चा जिसकी उम्र 20-22 साल है, अगर आप आगे अभी भी से आप 12 घंटे सो रहे हो, 10 घंटे सो रहे हो, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो अगर तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है यार। जब हमारा सब कुछ हो गया, हम लोग कर रहे हैं। अगर आप में जुनून आना चाहिए, वो आपके अंदर वो बात होना चाहिए कि मुझे हर रोज एक टशन में जीना है यार, कुछ करके दिखाना है। एक एक दिन आपको लगना चाहिए कि बस आज का दिन जिंदगी का सबसे बेस्ट होगा, यही सोचकर उठता हूं मैं हर रोज। वैसा आप फॉलो करो यार। जिंदगी में सक्सेस इतना आसानी से दे दो। नो, ये आपको लगता है ये शॉर्टकट्स है, ये दिखा रहे हैं स्कूल, ये पर कूल नहीं किया। इनको पता है कि इन्होंने कितना हार्डवर्क किया है। ये हर चीज सैक्रिफाइस की बंदे ने, हर चीज सैक्रिफाइस की इन्होंने। ऐसा थोड़ी ना इंसान रैंक में मजा आ गया। आप इंडिया में 400 मार्क्स का बस रैंक, पूरा इंडिया झगड़ रहा है। पूरे इंडिया में 30,000 लोगों ने जब सीए किया होगा, तो 50 लोगों को रैंक मिलता है। मजाक थोड़ी ना यार। कितना घिसा है उनको, उनको चेहरे पे मत जाइए आप। दे नो व्हाट दे हैव डन, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। दोस्तों से नहीं मिलना। बेटा फेसबुक व्हाट्सएप तुमने चालू किया था इन दिनों में? नहीं सर। जरा माइक में बोलिए। सर फेसबुक यूजुअली यूज नहीं किया था। एक्चुअली मैं मोबाइल सेलफोन अपना ऑन रखता था। यूजुअली लोग बंद कर देते हैं, पर उनको फिर बार बार टेम्पटेशन होती कि फोन चालू करे, किसी का फोन आएगा, किसी का फोन आएगा। लेकिन अगर वो लोग फोन चालू रखे, आई विल सजेस्ट कि वो लोग फोन चालू रखे। उनको पता है, उनके फ्रेंड्स लोगों को भी पता है कि इसके एग्जाम है, कि वो लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको भी पता है। तो फ्रेंड्स लोग मोबाइल स्विच ऑफ रखते कि टेम्पटेशन होता है बार बार चालू करो, कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। वैसा होता नहीं है सर। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी आपकी राहुल। राहुल एक बात पूछना चाहूंगा कि एक कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना दिन में पढ़ना चाहिए एक दिन में, और साथ में कितने सब्जेक्ट, अभी 90 डेज का समय बचा है इन लोगों के पास में, तो कितना दिन इनको लगेगा, कैसा होना चाहिए, मतलब ये कैसे पास होंगे? ऐसा कुछ फॉर्मेट आज आप दोनों बता दो। ये अभी से मान लो अब जो हो गया आप धुल जाना चाहिए। अभी क्या करते हैं, जो हो गया हो गया। अभी बच्चे कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। अब कई लोग हैं जिनका पिछले अटेम्प्ट में दे अपीयर, जैसे आपके से अपीयर, दे कुड नॉट गेट थ्रू, तो उनके इसमें 3 महीने बचे हुए, और कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 महीने बचे हुए। तो आपको हमें बताना है कि अब क्या रवैया होना चाहिए जिससे लोग पास हो जाएंगे। कुछ तो ऐसा बताओ कि पूरा भारत ये सुने कि यार नहीं ये करेंगे तो पास हो जाएंगे। क्या करना चाहिए, मतलब इन्होंने कितने दिनों में फिनिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
वुड सजेस्ट कि 90 डेज बचे अभी, तो डोंट थिंक लाइक, पहली बात तो सोचना बंद कर दो कि बहुत कम दिन बचे। एक्चुअली लोग बोलते हैं, आप इतना कैजुअल भी मत हो उसके बारे में कि बहुत कम दिन बचे, कि नहीं तो फिर दिन कम होते जाएंगे। आप ज़्यादा लोगों की सुने ना कि दिन कम बचे, इतना प्रेशराइज ना करें खुद को। और आई वुड सजेस्ट कि आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रेफर करें अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस मैनुअल। व्हाट यू डिसाइड, एक ही बुक रेफर करें, 2-3 बुक एक सब्जेक्ट के लिए रेफर ही ना करें। इंस्टेड ऑफ आपको 17 चीजें सोचने की जगह एक ही में कॉन्फिडेंट रखे, और एग्जाम के लिए इतना कॉन्फिडेंट जाए कि अगर आपने 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए कोई सब्जेक्ट के, जब भी कॉन्फिडेंट की एग्जाम में 101 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, बट मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा ये क्वेश्चन, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको। उतना प्रिपरेशन करो, और 1.5 मंथ तक आपका फर्स्ट रीडिंग अच्छे से होना चाहिए। मतलब 45 दिन आपको एक रीडिंग खत्म करना राहुल के हिसाब से। Yes. और राहुल बचे हुए 45 दिन में क्या होगा? जस्ट अलॉन्ग विद दैट आपको एक स्ट्रैटेजी ये बेस्ट रहेगा कि आप इंस्टेड ऑफ रीडिंग द सेपरेट प्रैक्टिस मैनुअल, आप बुक्स जो है आपकी क्लासेस व्हाटएवर में भी, तो आप उसी के साथ प्रैक्टिस मैनुअल को रेफर कीजिए, बिकॉज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी उससे, और मोर क्विकली रिवीजन होगा। और जितना प्रैक्टिस मैनुअल को 2-3 टाइम्स आप पढ़ सकते हो तो आप उसे पढ़िए। और एग्जाम के 1 महीना पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है उस दिन। एग्जाम के दिन आप क्या करते हो कि एग्जाम के दिन आप खुद पे टेस्ट करते हो कि क्या पढ़ूंगा, जो पढ़ा वो पढ़ लिया, ऐसा है। आप टेस्ट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, डिसाइड कीजिए, राइट इट डाउन कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी चीजें, यही पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए यही पढ़ूंगा, और कुछ नहीं पढ़ना है, इससे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यही पढ़ूंगा। तो आप डिसाइड कीजिए और उसी को थोड़े दिन में इंप्लीमेंट कीजिए, एक दिन दीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, और टेस्ट करके देखिए कि आपने जो डिसाइड किया है वो आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, आप कहाँ लैकिंग कर रहे हो, आप में कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, कि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट के लिए मैंने कम पढ़ा है या फिर ज्यादा पढ़ा है। तो उसके हिसाब से आपको एनालाइज कीजिए, वो 10 से 12 दिन जो एग्जाम के रहते हैं, एग्जाम के पहले के, वो एनालाइज कीजिए कि टेस्ट कीजिए खुद को, आपका खुद का पोटेंशियल कितना है वो उस दिनों के लिए। उस चीजों को टेस्ट में रखते हुए आप उससे एनालिसिस निकालिए अपना, और उस चीजों को एग्जाम के दिन इंप्लीमेंट कीजिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने वो सोचा था और टेस्ट भी किया था मुझ पे, और अब टेस्ट का रिजल्ट मुझे अभी भी दिख रहा है। और प्रीवियस एग्जाम कैसी भी हो, you don't have any control about it, just don't think of whatever it may be। आप सोचो मत प्रीवियस एग्जाम का, आपके हाथ में कुछ है नहीं कंट्रोल, तो आप जस्ट नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो, यू विल डू बेस्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम। आप पीछे का कुछ सोचो मत, आप आगे का सोचो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि मैंने ये गलत लिखा है, ये सही लिखा, होने वाला आप कुछ नहीं, आप उसकी टेंशन से आप नेक्स्ट पेपर को बर्बाद करने वाले हो। अगर आपको जस्ट थिंक कि अगर क्या मैं खुद भी बर्बादी चाहता हूँ खुद की, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप बर्बादी नहीं चाहते हो, आप अच्छा ही चाहोगे, सब अपना अच्छा ही चाहते हैं, तो आप सोचो मत कि दिस इज द बेस्ट। अगर पिछले में 90 आएंगे तो मैं इस बार ये पेपर में 100 लेके आऊंगा, तो आपका एवरेज हो जाएगा। राहुल एक बात पूछेंगे कि जैसे कितने बार आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा था, मतलब कैसे होता होगा, हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक दे एक सब्जेक्ट पढ़ना होना चाहिए एग्जामिनेशन के पहले, क्या इसके बारे में कुछ आपके पास में? एग्जाम के लिए सर मेरा ऐसा था कि मैं यूजुअली क्यूमुलेटिव रिवीजन करता था। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैंने कितनी बार पढ़ा था, कोई सब्जेक्ट बहुत भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैं डेली रिवीजन करता था। वो क्यूमुलेटिव 10 मिनट 15 मिनट लास्ट का डे, एट द एंड ऑफ द डे हाफ एन आवर देता था। तो मुझे आई कांट से कि वो 5-6 भी हो गए होंगे किसी सब्जेक्ट में, 10 से 15 भी। इसका जैसे सब्जेक्ट के लिए मैंने वॉल्यूम नंबर 4 एंड प्रैक्टिस मैनुअल, आई कैन से एटलीस्ट सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, नो डाउट, बट वो इतना दिल से आता था और इंटरेस्टिंग भी लगता था, तो मैंने करीब प्रैक्टिस मैनुअल 10 से 15 आई कैन, इतना श्योर था कि मैं 1 घंटे में प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ लेता था, इतना भी था। तो इसका के लिए वॉल्यूम 4 सबसे बेस्ट है, और उसको प्रैक्टिस मैनुअल के साथ रेफर करना, यू विल डेफिनेटली गेट 70+, आई कैन अश्योर यू। आप उसको पढ़ते रहो और इंटरेस्टिंगली 1 घंटा पढ़ो, रिलैक्सेशन मोड में पढ़ो इसका के लिए स्पेशल। अगर एक अपना बुक है जो वॉल्यूम 4, जो हमने पहले भारत में एक हमने वॉल्यूम नंबर 1 बनाया था, तो वॉल्यूम नंबर 1 वो ऐसा लगता था कि बहुत ही बड़ा है और इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पीपल आर नॉट, बिकॉज इट हैड अराउंड 350 पेजेस। फिर वो सब सोचते हुए मैंने कहा कि चलो काम करते हैं, पूरे भारत पे प्रेशर लगता है, अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ इतने बड़े बुक से तो बच्चे उससे पढ़ना नहीं चाहता। फिर मैंने सोचा कि आई हैव टू कट डाउन, तो मैंने कॉन्सेप्ट सारे वही रखे, सारी चीजें उतनी रखी, कंटेंट में जहां जहां पे ऐसे ने लेट के लिखा हुआ है वाहियात कचरा, आई डिड नॉट डिलीट द कॉन्सेप्ट्स, आई जस्ट डिलीट द कचरा वाहियात जो चीज़ नहीं कि अननेसरी ऐसे बड़ा बड़ा के लिखता है। I have, there's each and every concept which is there in the module. It is available in the volume 4. So I suggest you all please follow volume 4 only. Volume 1 में प्रॉब्लम तो है, मतलब कि अगर वॉल्यूम 1 एक बार पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप, बट रिवीजन कैन बी डन ओनली थ्रू वॉल्यूम 4। और इन्होंने जैसे कहा कि क्वेश्चन बैंक, जैसे प्रैक्टिस मैनुअल का ही हमने पूरा छाप दिया है, क्वेश्चन बैंक जो मेरा वॉल्यूम नंबर 3 है, तो यू शुड गो फॉर दैट। उससे ये कह रहा है 10-12 बार तो मतलब सारी चीजें अंदर से आती है एग्जामिनेशन में। यस।
तो रिवीजन की बात अगर हम लोग ने राहुल से बात करके सुना होगा, ही हैज फोकस्ड मोर ऑन नंबर ऑफ रिवीजन। यहाँ तक कि मैंने जितने भी 12 लोग रैंक में आए हुए, हमने वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, और जहाँ पे लास्ट टाइम भी 11 लोग रैंक में आए थे, एवरी टाइम आई आस्क्ड ओनली वन थिंग कि भाई तुम लोग क्या करते हो? तो बोले सर एक चीज हर कोई रैंकर बोलता होगा, रिवीजन, और दूसरी चीज बात करते तो प्रेजेंटेशन। मतलब रिवीजन, प्रेजेंटेशन, एवरीबॉडी। और तीसरी बात तो नो डाउट वो डीम्ड है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप रट्टा नहीं करते, मतलब यू नो दिस। और एक चौथी बात, प्रैक्टिस माने हो, मतलब आईसी हैज गॉन क्रेजी नाउडेज। आई मीन व्हाट दे आर डूइंग, आई थिंक द एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड हैज गॉट सिंप्लीफाइड। क्या, एक मिनट पूछा, आपको क्या लगता है, आपको लगता है प्रैक्टिस में क्या वेटेज है एग्जामिनेशन में? पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उससे आंसर कैसे लिखना चाहिए वो भी आपको समझेगा वो पढ़ने के बाद, और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में उसका भी आइडिया मिलेगा। अच्छा, तो प्रैक्टिस में आपने भी पढ़े थे? हाँ पढ़े थे। अच्छा, एक पूजा एक बात पूछेंगे, एग्जामिनेशन के 3 घंटे क्या होता है? कई लोग प्रेशर में आते हैं, कुछ सम पीपल नो क्या करते हैं 3 घंटे को पूरा 6 महीने पढ़ते, तरस आता है मुझे 3 घंटे को लिख नहीं पाए। बेटा बहुत परेशानी होती, तकलीफ कब होती? यू आर नोइंग द आंसर बट यू डिड नॉट राइट बिकॉज यू डिडंट गेट टाइम। एक पहला क्वेश्चन आया, आपने साला गलत सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में तो तुम्हारी जिंदगी लुट गई वहां पे। आई मीन व्हाट इज दिस यार, क्यों कर रहे हैं लोग? नादान है क्या? मतलब यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू डिसाइड कि आपको कौन सा क्वेश्चन, अगर 15 मिनट आपको दिया, स्ट्रेटेजी टाइम आउट दिया हुआ है, Why can't you decide the right question first? अगर पहले अरे आपको 2 क्वेश्चन वाहियात आ रहे तो ठीक है ना, लाइट इट एट द एंड यार। जो आपको 18 तरह ठोक दो, जरा 60-70 मार्क्स आपका पहले तो पासिंग तो सिक्योर कर लो, उसके बाद में देखते हैं भारत माता की, जब ठोक देंगे जो ठोकना। पर एटलीस्ट इफ यू सेलेक्ट द रॉन्ग क्वेश्चन एट द स्टार्टिंग, नो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। एक बार फर्स्ट इंप्रेशन अगर गलत हो गया तो उसके बाद पूरी एग्जामिनेशन आपकी लूट गई। क्या बोलना बेटा जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर? सर बिल्कुल सही है सर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एग्जाम में खुद को टेस्ट करते हैं। एग्जाम से पहले प्लीज प्रैक्टिस करो, एक थोड़े क्वेश्चंस, अगर आप पेपर सॉल्व करने को आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, कुछ क्वेश्चंस यू कैन, अगर क्वेश्चन रिवाइज कर रही है, क्वेश्चन मैं लिख सकती हूँ, जस्ट ट्राई आउट कि मुझे कितना टाइम लग रहा है इसे लिखने के लिए। और एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन वही सिलेक्ट करो जिसके लिए तुम एकदम श्योर हो, यू कैन राइट इट परफेक्टली। और फर्स्ट क्वेश्चन, लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करना है तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उतना टाइम मत दो, पहले से कम टाइम रखो कि इतने कम टाइम में रखो। जैसे फर्स्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन, हैव टू फिनिश इट इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का टारगेट रखो। वो 10 मिनट्स। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पेपर में जब आपको मिलता था तो क्या आपने ऐसा लिख कर रखा था कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में, और अपने टाइम इट इज ऑलरेडी प्लान्ड सब कुछ, क्या करती थी आप? हाँ सर, पेपर पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड मुझे पहला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद कौन सा करना है, ये सीक्वेंस मैंने डिसाइड कर ली थी। एंड देन जो नहीं आता उसके लिए बाद में जब टाइम मिलेगा आई थिंक ऑन इट, लेकिन उसके लिए मैं पहले सारे क्वेश्चन कवर करूंगी। बिल्कुल सर। बेटा ऐसा हुआ आपके साथ में, इतने मार्क्स आपने सिक्योर किए, ये मार्क्स हम लोग 800 में से पकड़े या 700 में से पकड़े? मतलब कि आपने यू हैड अपीयर्ड एवरी, आई लास्ट टाइम आई स्पोक टू मेनी रैंकर्स, यहाँ तक कि लास्ट टाइम आई वेंट टू राजस्थान ऑल्सो, अभी इस टाइम दिल्ली के कई लोग हैं, आगरा से, आई स्पोक टू एवरीबडी सेड कॉमन थिंग, सर रैंक लाना है ना आपको और पास होना चाहते हो, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। 800 में से 500 लाना इजी है, 700 में से 500 लाना डिफिकल्ट, वो तो बिल्कुल बात सिंपल बात है। सो मैंने पूछा, इतना चलता है इन लोगों में, ये पागल समान करते हैं, हवलापन करते हैं ये लोग। मुझे लगता है कोई जो बच्चा फेल होता है ना, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ हिज फॉल्टी मैनेजमेंट, ये अपने आप को बर्बाद कर चुका है। ये इस इंसान को समझ क्यों नहीं आया कि व्हाई ही इज नॉट एबल टू फिनिश द पेपर यार, जब तुझे सारी चीजें डिफाइंड है, 100 मिनट है, 180 मिनट है, 100 मार्क का पेपर है, जब सारी चीजें डिफाइंड है, ये ऐसा कुछ अनस्ट्रक्चर्ड पेपर नहीं जहाँ पे तुम्हें कुछ अचानक से थोड़ी ना कुछ हुआ है। अब जब सारी चीज 180 मिनट है, 100 मार्क का पेपर है, डिवाइड बाय कर तो 1.8 मिनट में एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो फिर आपको ऐसा क्यों हुआ जब आपको आ रहा था आपने लिखा नहीं? इट इज योर मैनेजमेंट। अगर आज आप फेल हुए हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, दुनिया को क्या बोल के। तो मैंने कई लोगों से बात किया तो एक चीज समझ में आती है, 100 मार्क्स जितने भी रैंकर, बहुत से बहुत, लास्ट टाइम आई स्पोक टू सौरभ ऑल्सो, ही इज AR 34, आई वेंट टू उदयपुर, सब बोले 785 मार्क्स का पेपर लिया मैंने, सिर्फ अकाउंट्स में बहुत डिफिकल्ट जाता, मुझे आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ ही देते। पर हर पेपर को मैं ऑलवेज डिजायर्ड कि आई शुड राइट 100 मार्क्स। अरे रैंक आने को लगता क्या, कम ऑन, 500 को डिवाइड करो 8 से, हर पेपर में 60, 62, 65, दैट्स इट, उतना तो आ ही सकता है यार, कम ऑन, कितना लगता है, क्या कर रहे हो आप? 8 सब्जेक्ट है, 60 मार्क नहीं आ सकते? अरे चलो 60 में तो इंस्टीट्यूट तो 50 ही मांग रही है, अगर आप 60 मार्क का नहीं लीजिए तो क्या कर रहे हो यार, मतलब आना ही चाहिए यार। तो क्या लगता है मेरा आपको कितना मार्क्स आप लिखती थी?
क्या होता? मैंने हर पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट पहले से रहता था एंड मैंने पहले प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस कि कितना टाइम लग रहा है मुझे लिखने के लिए. अगर मुझे टाइम लग रहा था क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए तो मैंने इम्प्रूव किया उसके ऊपर. कहाँ मुझे टाइम लग रहा है, मैं सोच रही हूँ क्या ज़्यादा, लिख नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ में मैंने इम्प्रूव किया. पहले मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे थे आई कॉन्फिडेंटली सॉल्व देम, और उसके बाद जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे मुझे उसके लिए टाइम मिल गया सोचने के लिए, तो मैंने लॉजिक लगा के वो आंसर्स लिखे. अच्छा, मतलब कुछ चीजें हम लोग अपने लॉजिक पे भी लिख सकते हैं. बिल्कुल क्या सर. आपने भी ऐसा कभी हुआ? बुरा मत मानिए कि नहीं आ रहा पर आपने ट्राई कर लिया. हाँ सर, SFM सब्जेक्ट में अभी हुआ था. हुआ था? हाँ सर. मतलब नहीं आ रहा था, आपने तुक्के से मार दिया. तुक्के से नहीं मारा, मैंने लॉजिक लगा के हाँ, वही आंसर मतलब। लिखा. बिल्कुल सर. लॉजिक लगा. हाँ। मतलब ऐसा करना चाहिए. मतलब इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज भी मार्क्स दे सकते हैं अगर आपका हो स्टेप वाइज मार्किंग होती है. हाँ हाँ हाँ. बेटा एक सवाल है कि उस 3 घंटों में अगर मान लीजिए आखिरी का 15 मिनट बचा हुआ और मेरा 25 मार्क का बचा हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसे समय पर रवैया क्या होना चाहिए कि 15 मिनट में अब मैंने एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखना चाहिए या फिर मैक्सिमम कवर करके थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए? ये सर, तो हर किसी को फेस करना पड़ेगा. ऐसा अकाउंट्स के पेपर में मेरे साथ हुआ था. लास्ट का क्वेश्चन कंप्लीटली पेंडिंग था मेरा एंड आई जस्ट हैड 10 मिनट्स टू राइट. तो मैंने वो 10 मिनट्स में हर क्वेश्चन टू द पॉइंट लिख दिया आंसर. बिल्कुल सही. ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि एक क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे तुम्हें उसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे. इवन इफ यू विल गेट इट, तुम्हें ज्यादा स्कोर नहीं होगा. बिल्कुल सही. तो पॉइंट वाइज टू द पॉइंट जितना आंसर ICI को चाहिए उतना लिख दो, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से यू विल स्कोर गुड. सही बोल रहे हैं. बेटा प्रेजेंटेशन के बारे में क्या लगता है आपको? थियरी में यू ऑलवेज स्कोर हाई 87 ITSM, अभी तुम एग्जामिशन में हो. क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है? मतलब कई बच्चों के, लड़कों की स्पेशली हैंडराइटिंग भारत में इतनी खराब है कि मतलब ये लड़का, कम से कम लड़कियां जो बचपन से रंगोली मेहंदी करती है तो उनको अंदर से बॉडी में से आता है वो प्रेजेंटेशन. पर लड़कों की हालात तो बद से बदतर, मतलब कई लड़कियां भी हौली है. पर क्या किया जाए? मतलब क्या आपको लगता है पेपर रीडेबल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. अगर आप खुद को एग्जामिनर समझो, आपके पास कोई ऐसा पेपर आ रहा है जिसमें कीड़े मकोड़े जैसी हैंडराइटिंग है, तुम क्या आंसर रीड करोगे उसमें? सही बोल रहे हैं. मतलब आपका प्रेजेंटेशन भी आपको लगता है रीजनेबली गुड है? हाँ, प्रेजेंटेशन मैटर करता है. और जैसे थ्योरी में सर बताते हैं, पहले यू राइट मीनिंग, इंट्रो, वट एवर यू वॉन्ट, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखो. ऑलवेज राइट एन एग्जाम्पल. वो एग्जामिनर को बताएगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ज्यादा एग्जामिनर इसी पे फोकस करता है कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं तुम्हारे. टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती. पूरे भारत को एक बार, बेटा ये जो बोला वापस एक बार रिपीट करना, 2 बार करना. पूरा इंडिया प्लीज फोकस, वापस से बोलना. टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करती. जस्ट फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड हाउ यू प्रेजेंट इट टू द एग्जामिनर. मतलब आपने DT IDT लॉ में कभी ऐसा लगा कि बहुत अफलातून ऐसा भारी टक्का इंग्लिश लिखा और भारी टक्का आपको मतलब पूरा ऐसा लगा जैसा किताब में वैसा लग दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं. वैसा ऐसा सर नहीं लिख ही नहीं. हाँ, बेटा, नहीं. आप यकीन मानिए पूरे दिन भर में 10 लोग मुझे यही सवाल पूछते, सर मेरी इंग्लिश. मैं बोला अच्छा सर, मुझे वो जो किताब में लिखा ना, और इसका का जो बुक है ना बेटा, ये फॉरेन ऑथर्स ने लिखा हुआ है, तो ये अनशंड इंग्लिश है. मतलब ये ऐसा इंग्लिश भारत इंग्लिश नहीं हो, ये ICI ने पूरा कॉपी पेस्ट मारा है बस. हाँ. पूरा शीशा सिलेबस से उठा के डाला हुआ. इसका सिलेबस की इंग्लिश जो है इतनी अफलातून इंग्लिश है, जब मैं उसको बोलता हूँ तो बच्चा होता है, सर आप जो बोल रहे हो 1 नंबर बोल रहे हो, क्या समझ रहा है इसका, आई एम लविंग इसका. ओके, वो दूसरा सर, पर वो ये खुशखबरी मुझे सुनाता है दूसरी ओर, सर वो जो किताब पढ़ते हो याद नहीं आता सर, कैसा करें? मतलब वो वैसा लिखना पड़ेगा. नहीं भाई, इट इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ चेकिंग योर इंग्लिश और नॉट इवन चेकिंग योर ग्रामर. कम ऑन, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ चेकिंग द कॉन्सेप्ट. यू आर नॉट. अगर मान लीजिए इंग्लिश का इतना ही ICI को शौक होता तो ICI हिंदी में पेपर क्यों करवाती यार? अगर मान लो ICI को इंग्लिश का ही टेस्टिंग करना है तो फिर ICI हिंदी का पेपर बंद करवा दो. ICI खुद बोल रही हिंदी में पेपर आप लिख सकते हो. मतलब ICI ये नहीं चाहती कि ऐसा कोई बोलता है मैं CA ऊपर हिंदी वाला हूं, ऐसा ऐसे. अरे तो CA वाला है भाई, तुझे हिंदी एक इंग्लिश लगे ब्रैकेट में हिंदी CA इंग्लिश CA, ऐसा कभी देखा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, ये सवाल मुझसे कभी दोबारा ना पूछे. भाई तुम ये इंग्लिश का एग्जामिनेशन नहीं है, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ. एक मिनट राहुल, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? आपको ओपिनियन देना है. मुझे भारत में परेशान, और हर बच्चा मन ही मन परेशान है. वो बोलते हैं लॉ में लॉ की भाषा लिखना है क्या, इसका में वही लिखना. क्या आपने ऐसा प्रयास किया था? सर मेरा मानना है कि जो आपको कंसेप्ट समझा है आप कितना बेटरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो और वो एग्जामिनर अपने आप समझेंगे. अगर आप खुद को ही बहुत अच्छे से समझा रहे हो तो और आप वही प्रेजेंट कर रहे हो तो एग्जामिनर डेफिनेटली समझेगा. और टेक्निकल वर्ड जैसे इसका की बात है, इट्स नॉट लाइक लिखो आप, लेकिन कैसा है कि अगर आप बहुत बार इसका पढ़ लेते हो, बहुत बार वो अंदर से आता है, आपको कुछ स्पेशल एफर्ट अंदर से जो आ रहा ठीक है ना. पर वो बच्चा इस वहम में रहता है हमेशा, अब मेरा क्या हो. अरे एग्जाम पागल हो गया क्या तू? अब क्या होगा? मतलब क्या मरेगा क्या तू? अबे तू नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा यार.
अगर आ रहा तो अच्छी बात है, सौदे पे सुहागा है, तू लिख दिया अगर अच्छी बात है तुझे। हम ये नहीं बोलते कि इट इज इररिलेवेंट, आप अच्छी इंग्लिश यूज कर रहे हो, 2, 5, 10 मार्क्स तो किसको ज्यादा मिलेंगे। अब कोई बच्चा बचपन से कॉन्वेंट में पढ़ा है और उसकी इंग्लिश बॉडी में से वो यूएसए में पैदा होगा, तो अगर मान लीजिए उसकी बॉडी में से इंग्लिश निकलता तो ठीक है, अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट उसको इज्जत देगा ना, नो डाउट। पर अब कोई भारत का आदमी जो हिंदी मीडियम में, मराठी मीडियम में, उसे बंगाली में पढ़ा होगा, तो क्या अगर उसकी इंग्लिश खराब तो मतलब उसकी कभी नहीं हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग भी ऐसे कॉन्वेंट से कोई पढ़े नहीं है सर। हम लोग यू कैन सी लाइक कि हम लोग ऐसे कॉन्वेंट से पढ़े नहीं और ऐसा इंग्लिश का कुछ नहीं। जब कंसेप्ट क्लियर है, आप लिख सकते हो सब कुछ, तो कोई प्रेशर नहीं कि टेक्निकल। कॉन्वेंट से नहीं पढ़े, आपके सामने वो विद्यार्थी बैठा जो कॉन्वेंट से ही नहीं पढ़ा है, ही डिड नॉट स्टडी इन कॉन्वेंट, ये इंग्लिश को जानता है कब से, जब से 11th 12th में है, तब से जाके इंग्लिश जानता है, और अभी नाउ ही इज एबल टू, ही इज सिक्योरिंग रैंक। तो समझ लीजिए बेटा, मतलब आईडीटी हो चाहे लॉ, मतलब वैसा टाइप का लैंग्वेज नहीं, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया। कॉन्सेप्ट फोकस करो और सबको समझ के आप वो समझ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, जिस तरह प्रेजेंटेशन। और आई वुड सजेस्ट इन थ्योरी सब्जेक्ट की जैसे इसका एंड ऑल लॉ और ऑडिट, आप अगर सिनॉप्सिस लिख सकते हो कुछ क्वेश्चन के, अगर कुछ क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स है, आप सिनॉप्सिस लिखो एंड देन डिटेल में एक्सप्लेन करो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 1 मार्क्स फॉर सिनॉप्सिस। यस, दिस इज वन थिंग। एक स्ट्रेटजी आपको टू बी नोटेड है, सिनॉप्सिस मतलब अगर इसका की मेमोरी नहीं है, आप क्यूसी है, Yes. तो आपने Well, A for and not A for the entire write the entire point 6 points, then again explain the points. क्या बात, मतलब ये एक एडिशनल पॉइंट। Yes, this is additional point. You will just follow the strategy throughout the paper. Don't just do for a single question, because if you have a question which have 6 points or 5 points, just write the synopsis and then start with your answer, because it will have it will create a good impact on the examiner and will score good marks. You will get extra 1 marks for synopsis because. एक सवाल है कि जैसे कि हम लोग जब एग्जामिनेशन में लिखते हैं, क्या आपको लगता है एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, चार्ट्स, ये भी करना जरूरी है, मतलब अच्छी बात है? सर, एग्जाम्पल डू रियली मैटर्स, और इससे लगता है कि बच्चे भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, उसको बहुत अच्छे से समझा है और वो इतना रिकलेक्शन पावर है उसकी। और इट्स नॉट कि वो क्वेश्चन के लिए आपने एग्जाम्पल लिखा सिर्फ उसी के लिए हेल्प करता है, वो जो इम्पैक्ट एग्जामिनर पे रहता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो थ्रू आउट द पेपर जब वो आपके जजमेंट लगाता है आपको। मतलब सभी लोगों को ये समझना होगा कि सपोज यू आर राइटिंग एन एग्जाम्पल फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट हैज, देखो भाई, इसको आईसीआई ने 2 बार रैंक दिला, मतलब जो कह रहा हो ये सर्टिफाइड आदमी है कि नहीं। अब मैं तो बोलता तो आपको गलत ही लगता है, क्योंकि आई नेवर सीक्रेट रैंक। पर बेटा मैंने रैंक में अभी तक मेरे क्लासेस में मैंने कम से कम 82 रैंकर्स को पढ़ाया अब तक, ठीक है, इंक्लूडिंग रैंक 1 ऑल्सो। पर अब जब हम लोग टीचर्स बोलते तो बच्चों को क्या लगता है, ठीक है लाइट लो भैया, टीचर्स का काम ही इसका धंधा है। अब ये आदमी का तो कोई धंधा नहीं है, ये जो बोल रहा फाइनल है, क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल लिखना चाहिए। बिकॉज अगर आप भी, अगर सपोज आई एम टीचिंग यू लॉ विदाउट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपको कैसे समझेगा? तो एज इफ थिंक करो कि वो जो बच्चा, वो जो एग्जामिनर है, वो आपका स्टूडेंट है, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम। आपका कल्चर के क्लाइंट जब आएगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप कितना इंग्लिश में बात कर रहे हो और कितना उसको ये समझना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो समझ रहे हो। तो यू आर गोइंग टू बिकम सीए, यू आर गोइंग टू बिकम प्रैक्टिसिंग, तो आपको ये समझा तो कि आपको किसको समझाना है, आम आदमी को, तो कैसे समझाओगे? एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल भर भर के लिखो, केस ड्रॉ करो, रफ चार्ट्स ड्रॉ करना। मैं तो हमेशा मॉड्यूल के इसका के सब्जेक्ट के पहले पेज पे लिखा हुआ, इफ यू ड्रॉ मोर चार्ट्स, डायग्राम, रफ चार्ट, यू विल बी गेटिंग मोर स्कोर बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अरे और तो और आपका पेपर भी तो भरता है, वॉल्यूम ऑल्सो मैटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वॉल्यूम में तो भरा, आपको लगना चाहिए भाई पेपर लिख के बैठा है, इतना बड़ा पेपर दिखना चाहिए आपका थ्योरी पेपर में। ड्रॉ रफ चार्ट्स, ड्रॉ डायग्राम्स, उससे योर प्रेजेंटेशन विल लुक गुड। ये सब मैटर करता है, ये सब चीजें ये सिर्फ क्लास में पढ़ने के लिए। बेटा क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंसान जो क्लास में पढ़ता है, पूरा भारत है लगभग, आजकल पूरा भारत है, वर्चुअल का जमाना है, ऑलमोस्ट सबके टीचर्स एक जैसे ही है, सबके मतलब कि देखना, कोई मान लो डीटी के लिए अगर कोई पढ़ रहा तो एक टीचर से पढ़ता है, एसएम के लिए पढ़ता है एक टीचर से, फिर सबके कोई एक बच्चों को इतने मार्क्स आते हैं, और एक बच्चों, अब मेरे ही कुछ बच्चों को जिनको 30 मार्क्स भी आए होंगे, और मेरा हाईएस्ट स्कोर इस टाइम 86 भी है, और मेरे क्लास से कुछ बच्चों को एग्जाम्शन भी, तो कुछ बच्चों को 25 भी है। तो मतलब मेरे नॉलेज में डिफरेंस है कि बच्चों में ऐसा क्यों होता होगा? सर, ये बच्चों की सोच पे ही है ना, तो वो रेगुलरली रिवीजन पे फोकस देते हैं, क्यूमुलेटिव फोकस दे नहीं पाते हैं, और जैसे ही अगर फोकस नहीं रहेगा क्यूमुलेटिव रिवीजन पे, तो ना तो वो इन डेप्थ स्टडी कर पाएंगे, ना तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएंगी। जब तक क्यूमुलेटिव रिवीजन, या तो तुमको थोड़ा सा तो मेमोराइज की बात है ही, आपको याद भी होगा सब्जेक्ट, और कंसेप्ट क्लियर है, तो याद अगर हो रहा है तो वो सोने पे सुहागा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। कंसेप्ट बहुत क्लियर है, सर जैसे समझाते कंसेप्ट तो सबके क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा मेमोराइज की बात है, वो अपन ओवरकम कर सकते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन से। वो अगर हो जाते हैं तो आपको, ये जो लोग दिक्कत फेस करते हैं कि एग्जाम के टाइम मुझे नहीं आ रहा है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, एज लाइक वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं कर पाते, वो लोग ये फोकस नहीं करते कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर बच्चा 10 बार बोल चुका है क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या, कुछ ना कुछ तो उसने समझा होगा, ये कोई ऐसा फेंक तो नहीं रहा।
मतलब इसने हमेशा जो मैं क्लास में कहता हूँ इसका के बारे में, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका में वो तो करता हूँ भाई, और लॉ में तो वही कर रहा हूँ। पूरा क्लास ही हम लोग पूरा, क्या आपको लगता है बेटा इसका में तुम जब इसका कर रहे थे तो तुम्हें क्या अच्छी बातें लगी इसका के सब्जेक्ट में? इसका में सर जो एटमॉस्फियर था क्लास का इतना फ्रेंडली था, इज लाइक हम टीचर से नहीं, हम लाइक एज लाइवली पढ़ रहे हैं ऐसा बच्चा लाइक हम लोग सर को ऐसे दोस्त की तरह मानते थे कि कोई दोस्त पढ़ा रहा है, जैसे कि आपको कोई डिफिकल्टी आती हो, आप किसी फ्रेंड के साथ जाते हो कि फ्रेंड मुझे कुछ समझा दे एग्जैक्टली, तो आप कितना अच्छे से समझते हो। एज लाइक अगर वो एटमॉस्फियर से आप पढ़ते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं कि यार अपना दोस्त ही तो है, कौन समझा रहा है यार, कोई नहीं। ऐसा अगर एटीट्यूड रखो तो ऐसा लगेगा नहीं टीचर रिलेशनशिप है ऐसा। आपको बहुत ऊपर जाना है बेटा, बहुत मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दुआ है आपके साथ। मैं तो सर को हमेशा दोस्त ही मान के चलता हूँ। सर को जब पहली बार मिला था तब से दोस्त मान के चला, और अभी तक ये तो मेरे बड़े भाई जैसे है। इट्स लाइक दैट। बच्चा सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। बेटा तुझे देखता हूँ ना और तुमको देखता हूँ यार, बहुत बड़ी बात है ये। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुम नहीं जानते, तुम्हें लगता है मुझे रैंक मिल गया, और जो हर रैंक को लगता है ठीक है यार, पर बेटा उसके बारे में सोचो जो इंसान ने क्या कई सालों से मर करके सीए नहीं पास हो रहा है, उसके लिए तुम भगवान हो। यू डू नॉट नो व्हाट यू आर। अरे बहुत बड़ी बात होती है यार, इंडिया में 50 लोग में आना मतलब कितने, और इंडिया ऐसे सीए में पागल वाहियात लोग ने, तुम बीकॉम के रैंकर नहीं हो। सीए में इतने ऑलरेडी होशियार लोग, उसमें से 50 लोग, मतलब तुम कौन से लेवल के लोग हो यार। मतलब ये हमारे सौभाग्य की इतने बड़े लोगों में हम बैठे हुए हैं। आज हम लोग पूना में फॉर्चुनेट, ये तो दोनों पूना से है, बाकी लोगों को तो हम लोग मिल नहीं पाए, पर कहीं ना कहीं अपने आसपास में ऐसे लोग हैं, हमें सीखने तो मिल रहा है। आज मैं लेक्चर बेटा ये क्यों ले रहा हूं मालूम क्या? ये लेक्चर नहीं कि बेटा बहुत गांव में तक दूर दूर तक जाएगा, तुम दोनों को बहुत दुआएं लगेगी। तुम जो कह रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए तो कुछ नॉर्मल सा काम होगा, पर तुम्हारी एक एक बात को लोग पत्थर की रकील समझ के पढ़ेंगे। ये बच्चा ये तो इसको अगर समझ रहा ही नहीं तो कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना सुना है, तो वो घर वालों को मम्मी को पूछता, पापा अरे मम्मी पापा सीए नहीं है, उसके भाई से पूछता, भाई बोलता देखो सबकी आत्मीयता है वो हेल्प करेंगे, पर उनका बोला हुआ काम का नहीं है जो तुम बोल रहे हो फाइनली, बिकॉज उस बच्चे को आज उससे सुनने मिल रहा है जो सीए। आपको पता नहीं बेटा देश में कितना कोच्चे में कहां पढ़ रहा है वो, बिहार में जाके तो कोच्चे में कोई गांव में कोई पढ़ रहा है, उसको कौन रैंकर दिख रहा है? 25 सालों में या 50 सालों में एक रैंक में है, उसको क्या मालूम तो होना चाहिए कि रैंकर होता क्या है। वो सिर्फ फोटो में देखते रैंकर है, अच्छा रैंकर है भाई। आज पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि रैंकर अपने दिल की बात कर रहे हैं। आज आप 50 सालों में आप देख रहे हो कोई रैंकर ऐसा बोलने को रेडी नहीं, तो आज आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात करो। कई रैंकर्स तो अपनी बातें शेयर नहीं करते, बोले लोग कॉपी करेंगे, बट एटलीस्ट तुम्हारा ऐसा एटमोस्फियर, ऐसा कुछ एटीट्यूड नहीं कि यू आर नॉट हाइडिंग, इट्स गुड फॉर अस। अच्छा बेटा एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी आपने जो भी कहा उसमें सारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मान लो डीटी, इतना बड़ा है, वो आईडीटी बड़ा है, क्या करते थे एसएफएम ये बच्चे अकाउंट्स बोलते हैं, ये बड़े सब्जेक्ट्स का करे क्या करें इनका? सर डीटी के स्पेशली जैसे आई यूज्ड टू रेफर वीजी सर्स मॉड्यूल, उनका कैसा कि आप मॉड्यूल पढ़ लो, एग्जैक्ट डोंट डू फॉर सेकेंड टाइम, एक बार पढ़ लो आप मॉड्यूल बहुत अच्छे से, क्वेश्चन उसके जो कंप्लीट कर लो, लेकिन इतना फॉर श्योर रखो कि एग्जाम के दिन सिर्फ आप समरी मॉड्यूल सिर्फ समरी मॉड्यूल ना पढ़ो, आप उसको प्रैक्टिस मॉड्यूल से अटैच करके पढ़ो, और जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख नहीं लेते हो तब तक, क्योंकि डीटी यूजुअली प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं हो पाते। आप घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हर एक चैप्टर के बारे में डीटी के लिए स्पेशली प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लास में इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है डीटी के लिए। सो सिर्फ बच्चा सिर्फ समरी मॉड्यूल पे फोकस करता है, एक्चुअली सर रिकमेंड करते हैं समरी मॉड्यूल्स, बट उसके साथ वो तो है ही समरी मॉड्यूल, आपने क्योंकि 6 अगर मॉड्यूल बेस्ट पढ़े हैं, और जब 6 मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो आप समरी मॉड्यूल साथ में अटैच करके पढ़ो डेली। जब क्यूमुलेटिव रिवीजन के लिए समरी मॉड्यूल हेल्प करेगा, और आप पॉइंट मैच करके देखो कि जो मेन मॉड्यूल में है और समरी मॉड्यूल में अगर थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन मॉड्यूल में, तो उसको थोड़ा आप लिख लो समरी मॉड्यूल में, तो क्योंकि आपको लास्ट दिन आपको 6 मॉड्यूल नहीं पढ़ने, आप पढ़ ही नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। समरी मॉड्यूल को ऐसा बना दो कि वो 6 बुक लगे सर, वो 6 बुक लगे, और उसको प्रैक्टिस मॉड्यूल के साथ करो, आई कैन अश्योर कि आपको 70+ मिलेंगे। क्या बात बेटा, आईडीटी आपने कहां से पढ़ा, कैसा रहा? सर आईडीटी मैंने दीपक गुप्ता सर से पढ़ा था, एंड मोस्ट आई कैन से कि उनकी टीचिंग के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, बहुत कंसेप्चुअल, इतना डीप तो कोई लेके नहीं गया अभी तक। जो मैं आईडीटी के बारे में मेरा ऐसा था कि कौन इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैंने उनका नाम सुना था कि पहले सुना था कि पूना में ऐसे कोई है, पर मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि ऐसे कुछ क्लासेस भी होते हैं। सो आई जॉइंट, और उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जो उनका एक पर्सनल अटेंशन था हर एक डाउट्स के बारे में, और उनका जो लास्ट लेक्चर था अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द केस लॉज केस स्टडीज इन द एग्जाम, वो मुझे रियली हेल्पफुल किया। मैंने वही वे से प्रेजेंटेशन किया है। आई रियली मैटर कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स इन आईडीटी 84 है,
जस्ट बिकॉज उन्होंने वो जो 2 घंटे का लेक्चर उन्होंने दिया था कि हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड हाउ टू राइट द केस लॉज, क्या फोकस करना चाहिए और क्या चीजें प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट क्या यूजुअली गलती करता है केस लॉ लिखते वक्त, या कैसे हाई कोर्ट गलत लिख देता है, या ट्राइब्यूनल कहाँ लिखना चाहिए क्या नहीं लिखता है, वो मैंने चीज़ें बहुत फोकस की। मेरे एग्जाम शेड्यूल एकदम एट द एंड मोमेंट भी मैंने उसी पे फोकस किया कि वो 2 घंटे का लेक्चर मैं देखूंगा। मैंने वैसे सर का लेक्चर भी देखा था, 1 घंटे का था अराउंड कुछ की। अच्छा, जो मैंने अपलोड किया था। हाँ, आपने कुछ अपलोड किया, जयपुर और आगरा का था, तो वो भी हेल्पफुल था कि एग्जाम के दिन। इंदौर का था। हाँ, इंदौर। क्या किया था उसको, जो मैं पूरे भारत में मैं घूमा पिछले अटेम्प्ट के पहले, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 1 घंटे का सेशन दिया था कि भाई इसका में क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्ड किया और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। तो फिर बेटा आपने वो देखा था, मतलब वाज इट बेनिफिशियल, कैसे था? सर बहुत बेनिफिशियल था एक्चुअली। आप जो सजेस्टिव दे रहे थे कि यूजुअली इतना होता नहीं कि उस दिन के लिए बताता है कि जी एग्जाम के दिन आपको क्या पढ़ना है, सर उतना टिप्स दे रहे थे कि उस दिन आपको कौन से घंटे से लेकर कितने घंटे तक क्या पढ़ना है, इतना एक स्टैंडर्ड है आपका, इतना हो जाना चाहिए। सो वो एक्चुअली बहुत एडवांस में था। एक्चुअली वो 1 से 1.5 महीने पहले दिया था सर ने, क्योंकि आप उतने टाइम में आपको इतना प्रिपेयर खुद को करना है कि आप वो जो सर ने टाइम टेबल बताया उसके आप खुद अडेप्ट कर पाओ उस टाइम टेबल को, उसी हिसाब से बताया था और वो बहुत हेल्पफुल था एक्चुअली। वो बहुत मैंने फॉलो भी किया था। और दीपक गुप्ता का भी आईडीटी का लेक्चर्स जो 2 घंटे का था, हाउ टू राइट एग्जाम, उसने बहुत बेनिफिशियल हुआ। एक्चुअली केस लॉ मैंने उसी तरह से लिखे, मैंने केस लॉ के नाम भी याद आते थे। एक्चुअली यू शुड रेफर इंस्टीट्यूट का केस लॉ बुक, वो होना ही चाहिए। और वो लेक्चर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था आईडीटी के लिए स्पेशली। और आईडीटी वास्ट है, आप कोई और जितना सब्जेक्ट के इनडेप्थ में जाओगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उसको थोड़ा एग्जाम के दिन एक्चुअली द टेस्टिंग सब्जेक्ट आईडीटी और डीटी है, सो उसको आप थोड़ा सा एडवांस में टेस्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 1 महीने पहले आपको खुद को टेस्ट कीजिए कि 18 घंटे या 16 आवर्स में मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ आईडीटी डीटी जो मुझे कवर करना है। स्पेशली आईडीटी डीटी टेस्ट कीजिए कि यो जो मोस्टली यूजुअली मुझे सुनने मिलता है फ्रेंड से और इनसे फ्रेंड सर्कल से कि यूजुअली आईडीटी डीटी कंप्लीट नहीं कर पाते वो लोग, मुझे सुनने मिला। तो आप टेस्ट नहीं कर पाते हो, आप प्लीज टेस्ट कीजिए, उसके लिए खुद पे टेस्ट कीजिए कि मैं 16 आवर और 18 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि वो आप टेस्ट कीजिए खुद पे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसका के लिए अगर इनको एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो कुछ 1-2 टिप्स ऐसे। मोस्ट आई विल फोकस ऑन क्यूमुलेटिव रिविजन एंड ऑल दैट, एंड स्पेशली आप अगर वॉल्यूम 1 इज टू बिग, आप अगर एक बार आपका लगता है आपको पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से वॉल्यूम 4 इज मच मोर सफिशिएंट आई कैन से। और आप उसको प्रैक्टिस मॉडल के साथ डेली 1 घंटा भी रिलैक्सेशन पढ़ते हो कि नो, आई कैन अश्योर आईसीआई चैलेंज करो आईसीआई को कि आईसीआई भी आपको 60+ लाने से नहीं रोक सकती। चैलेंज जस्ट मैं रोज पढ़ता था, आईसीआई को चैलेंज करके घर पे आपको बहुत एफर्ट्स लेना पड़े इसका के लिए क्या? मैं बोला सर आपको कि रिलैक्सेशन मोड में पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ता था, चिल्ला के पढ़ता था। इज लाइक मेरे दिन का वो टाइम बस्टर बोल सकते कि यार ये सब्जेक्ट नहीं है ये तो। सर पहले ऐसा था कि इसका के बारे में जैसे लोगों की धारणा थी कि भाई इसका लोगों को मारता है, बट बिकॉज ऑफ व्यू कि अभी इसका सब लोगों को तारता है। अच्छा, मारता है बेटा, बहुत आगे, मतलब शायर, ऐसा लगता है शायर होगा, बड़े बड़े शायरी बना रहे हो। और इसका में सर पहले लोग सोचते थे कि यार इसका सब्जेक्ट चलो 40-50 आ गए तो ठीक है। अब इसका ऐसा है कि यार 80+ आप सोच सकते हो। जो सोच डेवलप की है, यू कैन सी की सोच कहाँ से डेवलप की है। वो बंदे ने सोच की कि यार इसमें कहीं लाना है तो सोच डेवलप हुई है। वो सोच कहाँ से डेवलप हुई आप बोल सकते हो। लास्ट टाइम द हाईएस्ट वाज 92। इस टाइम का लास्ट टाइम पर एग्जाम्शन इतने थे क्योंकि मैं पूरे इंडिया में नहीं था वैसे, तो इस टाइम पे पूरे इंडिया नहीं पढ़ा। और इस लास्ट टाइम तो 150 एग्जाम्शन थे, इस टाइम पे 400 क्रॉस हुआ और 86 हाईएस्ट है और 80 से ऊपर वाले भी कई लोग हैं। तो मतलब हम लोग ये सब लोग मान के चले, अगर आपको इसका की क्लास लगाई है एंड इफ यू गेटिंग 60 से कम तो फिर आपका खुद का प्रॉब्लम है। मतलब यू शुड स्कोर हाई इन इसका, मतलब अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप हाथ के मार्क्स छोड़ रहे। दैट शुड बी योर एम। पूजा कुछ सवाल, लास्ट के कुछ सवाल आपसे। क्या आप जो पास हुई, क्या लगता है इतने भारत में इतने स्टूडेंट हैं, आपको ही क्यों रैंक मिला होगा, क्या बात है आप में ऐसी? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी नॉर्मल स्टूडेंट्स ही हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं किया उसके लिए। पर जब भी मुझे लो फील होता था मैं सर के मोटिवेशनल लेक्चर्स देखती थी। अच्छा। तो वो देख के मैं चार्ज हो जाती थी कि अरे नहीं, पढ़ना है, कुछ तो अच्छा करना है। तो जब भी लो फील हो, आराम से तुम सर के कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर देखो, तुम चार्ज अप ही होगे, तुम लो कभी नहीं होंगे उसके बाद। और बाकी समरी नोट्स हर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स के मुझे बनाने पड़े, लेकिन इसका के लिए तो कुछ अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ी। वॉल्यूम 4 ऑलरेडी थी
और सर जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो चार्ट्स सर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं एक्सपर्ट सिस्टम की बात कर रही थी, उसमें सर ने बताया था नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, तो वो सब मैंने ड्रॉ करके लिया था। तो वो एग्जाम्स में मैंने चार्ट्स ड्रॉ किए थे। ऑब्वियसली इट हेल्प्स टू स्कोर यू गुड। और एक सवाल आपसे और बेटा कि एग्जामिनेशन के पहले दिन कितना सोना ठीक है? मतलब 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कि एक दिन पहले भी यू स्लीप 6 आवर्स तो मिनिमम सोना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब इतना उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो पता नहीं क्या करते टाइम मैनेजमेंट, आखिरी दिन में सिर्फ 3 ही घंटा सोते, बोलते कल देख लेंगे, और फिर पेपर में जाके देखो प्लान कि ये स्ट्रैटेजी सही है आपके साथ? बिल्कुल सही नहीं है। 6 आवर्स तो तुम्हें सोना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए कि यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। तो 6 घंटे सोना ही 6 घंटे सोना ही चाहिए। अगर बेटा एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि एग्जामिनेशन के दिन पहले, जैसे मतलब कि एग्जामिनेशन हो गया, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को, आप एग्जामिनेशन से आ जाओ, भरपूर खा लो और फिर सो जाओ। आई हैड फॉलोड दिस, और कई रैंकर्स ने मुझे कहा। इसके पीछे ये कहा था कि अगर आप आते हो और आपने अगर डायरेक्टली पढ़ाई करना चालू की, तो कुछ लोगों के माइंड पे कंट्रोल नहीं है, जो कंट्रोल करते बात अलग है, पर 90% लोगों के माइंड पे कंट्रोल नहीं, वो आके वही पेपर खोलेंगे, दुनिया भर के लोगों से बात करेंगे, उस पेपर के वो बाहर, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। दे विल जस्ट फोकस कि मैंने क्या लिखा, 10 लोगों से बात करके अपने दिमाग की पूरी बजाएंगे, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू गेट सो डिस्टर्ब, यू गेट पिस्ड ऑफ। क्या रे हुआ क्या भाई, 3 क्वेश्चन मैंने तो सोच के जो सही थे वो भी गलत निकल गए। क्या ये आपने भी कहता, आपके एग्जाम से आपके पेपर देखना सही है? पेपर कभी मत देखो, मन में आता है, बहुत बार आता है अरे चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, और कभी कभी तो दिमाग में भी आता है अरे वो मैंने लिखा था, वो शायद मैंने एंट्री गलत कर दी। तो वो दिमाग में बिल्कुल मत आने दो, क्योंकि हमें आगे वाले पेपर पे फोकस करना है। जो हो गया उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते। और इवन इफ यू सी कि मैंने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, यू आर नॉट देयर टू जज इट। एग्जामिनर जज करेगा तुमने कितना सही लिखा है, क्या सोच के लिखा है, तुम्हारा अप्रोच क्या था। तुम्हारा अप्रोच ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे राइट आंसर से, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। और दूसरी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को, जैसे आप आते हो सो जाना चाहिए, और सोकर फिर 9 बजे जब उठते हो आप, या 10 बजे उठते हो खाना खाने के बाद में, देन फिर आराम से आप 4-5 घंटे पढ़ाई करके वापस सो के आगे निकल स्टार्ट। अगर आपने क्या किया, एक अपने दिमाग का प्रेशर है वो इतना हेवी हो चुका है, आप उसके में आके सीधा पढ़ाई वापस पढ़ना चाहते हो, हार्डली 4-5 घंटे में 1-2 पेज, फिर होता है कि फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर भी खत्म नहीं हो रहा, नींद भी नहीं। अब क्या होता है जानते हैं, आज मैं सो जाता हूँ, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, तो आपने 5 घंटे बर्बाद कर दिए। भाई एग्जामिनेशन के पहले का एक मिनट आपके लिए इतना कीमती है, वहां का तो आपका पहले से प्री प्लान शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कितने घंटे में क्या क्या खत्म करना है और कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। एवरीथिंग शैल बी डिसाइडेड इन एडवांस। तो आपको एक इंडेक्स और बनना चाहिए जहां पे आप डिसाइड करोगे कितना घंटे में क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो ये बेटा ये सब सही है क्या नहीं, मतलब क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। आने के बाद मम्मी के हाथ का खाना खा लो और पढ़ने बैठ जाओ, एनर्जी मिलेगी उससे। और उसके बाद में मेरा इतना ही बोलना है कि एग्जामिनेशन के पहले दिन आप जितना से ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो, उसके पहले आपका क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए, उसके पहले आपका समरी नोट्स भी होना चाहिए। तो वो जो एक मिनट है ना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। उसको ऐसे मत जाना ना, आपके एग्जामिनेशन के 5 महीने की दुनिया अलग है और एग्जामिनेशन का पहले वाला दिन ये दुनिया से सबसे अलग है। तो दैट उसके समय का एक मिनट मैटर्स अ लॉट, उसमें वो टाइम वेस्ट मत करना। क्या आपको लगता है कि आपने रिवाइज कब कर पाई पूरा समय? हाँ कर पाई, क्योंकि मेरा पहले से शेड्यूल पूरा प्लान था। नाउ यू पीपल हैव 90 डेज विथ यू, तो अभी से तुम प्लान करो तुम्हें एग्जाम के एक दिन में क्या पढ़ना है। अच्छा, तो आपने ऐसा पहले से प्लान करके रखा? ये मेरा पहले से प्लान था, मुझे एग्जाम के दिन ये रेफर करना है, मैंने बाकी कुछ एक्स्ट्रा देखा नहीं। मतलब मेरा प्लान था ये समरी नोट्स मुझे करना है, इसमें मैंने सब कवर किया है। अच्छा। और जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हर सम तुम नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो फाइंड अ सम जिसमें हर एक टाइप का प्रॉब्लम कवर हो रहा है। तो वो सिर्फ सम एग्जाम, यू मार्केट एग्जाम में से वो सम देख लो, क्योंकि हर सम सॉल्व करने को यू जस्ट हैव 1.5 डे विथ यू। अच्छा। तो वो होता नहीं है उस वक्त। तो आपने पूरा अलग से एक इंडेक्स बना के रख दिया था? हाँ। थैंक यू। बोलिए सर, क्या रहा आपके लिए कुछ खास? सर कुछ खास बताना चाहूँगा इन लोगों के लिए कि स्पेशली आपको रैंक लाने के लिए जो लोग सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप इतनी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में कि डिफिकल्ट नहीं है आप,
क्योंकि 50% के लिए तो हर लोग मेहनत कर रहे हैं। आप स्कूल में भी आप देखते हो, आप एवरेजली ए पर्सन स्कोर 65, 70, 75, तो आप कोई भी बोलोगे बीकॉम में 75, इतना तो आप स्कोर करते हो। आपको रैंक लाने के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने हैं, आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो, लेकिन इतने आप देखो, अगर उसको सिंप्लिसिटी से देखोगे, वो जो मैंने साइंस, ये इसके लिए पीछे एक साइंस डेवलप किया है कि आप जितना उसे सिंप्लिसिटी से देखोगे उतना ही अचीवेबल भी बहुत अच्छे से लगेगा। जैसे 50% सर आपको कभी भी लेके आना, 50% यू हैव टू स्कोर एनी मोर, बट आपको सिर्फ रैंक लाने के लिए सर सिर्फ 10% एक्स्ट्रा की मेहनत करनी पड़ती है, 10%। और आपको 10% देखो, अगर वो इमेज को लेके आए तो 10% बहुत ही छोटा, मेरे लिए क्या 10%, किसी के लिए भी एंगल से 10% हमेशा सबके लिए छोटा है। 50% हमेशा कोई भी ला सकता है, वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन 10% के लिए अगर हर कोई मेहनत करे एक्स्ट्रा 10%, और मैंने सबसे फोकस किया कि अगर वो 3-4 सब्जेक्ट में वो 70 का टारगेट रखे एंड ही कैन अश्योर वो 500 मार्क्स सिक्योर कर सकता है, और गारंटेडली कैन से कि 500 पे रैंक पक्का आएगा। वो 3-4 सब्जेक्ट के फोकस और 2-3 सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, नो डाउट कंसेप्चुअली पढ़ो और बहुत पूरा पढ़ो, लेकिन कहाँ टारगेट करना है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मार्क्स कहाँ आते हैं, अपन ने कहाँ टारगेट करना चाहिए, और अपन कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है उस पर मोर ध्यान दो। और ईजी है, इतना सोच के चलो कि बहुत ईजी है। आप एक्सप्लेन करो कि 10% कितना इजी है, 50% सब लोग इंडिया उसके लिए 50% सबके लिए करना है, 10% मुझे एक्स्ट्रा देना है, 10% उसका आपको एफर्ट्स मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि ये 2-3 महीने खुद पे टफ हो जाइए। अगर टफ नहीं होगे तो लाइफ आपके लिए ईजी नहीं होगी। अगर खुद पे टफ नहीं होना तो लाइफ यू कैन इमेजिन कि कैसा होता। तो खुद पे थोड़ा 2-3 महीने टफ होना चाहिए, और सोचो कि ये 2-3 महीने को अपनी आगे की लाइफ से कंपेयर करो कि दिस 6 मंथ और मेरी आगे की लाइफ। अच्छा सोचो, अपने आप आ जाएगा। जस्ट डोंट केयर कि बुरा सोचते क्यों हो। और जितना लोगों से आप फ्रेंड्स होंगे आपके, लेकिन जितना कम इंटरेक्शन कर पाओ, थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स ही रहेंगे, कोई 2-3 महीने में आपके दूर नहीं जाने वाले, उनको भी पता है और आपको भी अंडरस्टैंडिंग इतनी है। तो 2-3 महीने में जितना कट शॉर्ट रखो, जितना आपके स्टडी रिलेटेड बात कर पाओ। अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड से बात करके लगते इंस्पायर्ड लगता है, मुझे मोटिवेटेड लगता है, जैसे किसी को लगता है कि सर से बात करूं मुझे मोटिवेटेड लगता है, तो वो भी कर सकता है, तो आप ऐसा कीजिए। लेकिन एग्जाम के दिन प्लीज डोंट फोकस पिछला पेपर। एक्चुअली मैं तो पेपर देखता नहीं था, जो बैग में रह गया लास्ट दिन, 8 के 8 पेपर एक ही बैग में रहते थे, कुछ देखता नहीं था, बिकॉज आई नो आई डोंट हैव ए कंट्रोल एस्पेक्ट ऑन दिट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई नो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने अगर नेक्स्ट पेपर को बर्बाद करने वाला, और कुछ नहीं करना। अगर आपको पर्सनली मैं ब्लंट होके बोलूंगा कि अगर आपको खुद का पेपर बर्बाद करना है तो आप प्लीज सोचिए उसके बारे में। अगर नहीं बर्बाद करना तो प्लीज आई विल इग्नोर, पेपर को इग्नोर, डायरेक्टली इग्नोर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप आपको ये डिस्कशन से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है पूरे भारत को। आपने यहाँ पे आए बहुत कुछ बोला, और डेफिनेटली मुझे एक बात कहना है बिफोर आई फॉरगेट कि जितने भी एग्जामिनेशन के पहले वाला दिन आपको जो रिवीजन इस समय लॉ के लिए भी होगा, जैसा पिछले टाइम हमने इसका के लिए भी करवाया था, आपने वो पूजा आपने अटेंड किया था 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर? सर करना था, अटेंड रह गया। या आप वहाँ से एग्जामिनेशन दे रही थी? इचलकरंजी से दिया था, ओके। एंड दिस एग्जामिनेशन, दिस 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर्स अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया, तो आप वो ज़रूर करना वहाँ पे जाके। और लॉ का भी रहेगा, वो भी ज़रूर करना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में 5 घंटे के पहले 5 घंटे में द इंटर सिलेबस विल बी रिवाइज, और मैं खुद रहूँगा। और बस यू हैव टू, और वन मोर थिंग, आपको दिस चार्ट्स ऑफ लॉ, एंड इसका तो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, लॉ के चार्ट्स भी विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। और ये जो सारे चार्ट्स बनाए, आई वुड लाइक टू थैंक स्वारंगी फॉर दैट। स्वारंगी रियली हेल्प मी आउट फॉर मेकिंग दिस लॉ सब्जेक्ट अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल। तो आप मान लीजिए अगर आपको लॉ सब्जेक्ट अगर थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड स्वारंगी इज ऑल्सो देयर, राहुल इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट। So bas, thank you very much, and love you all. God bless. I hope you have enjoyed this, and God bless you all. Thank you very much. Take care. Bye bye. Okay, come on, everybody. Wish you all the best. All the best, guys. All the best. Yeah. Thank you very much.